शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा मोरया। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस महाराज की। Welcome all. Yes, great day. Happy New Year to everyone. Last week we had some important events. One was Sharda Ma's birthday. It was also the birthday to Bhagwan Ramana Maharshi on 30th. And the 30th also happened to be the Tithi Kam Nakshatra for Aradhana of Kanchi Mahaparivar. We had Joyu or Sita, one of them had actually posted the live link on the group as well. Beautiful function that happened at Kanchi for celebrating. For us, even Aradhana is a celebration. Celebrating the fact that now Guru still continues to be with us. That is what is the celebration all about. Today, of course, is a very special day, and the reason why it is also special is something we will try and cover. इसलिए हमने आज ये सेशन आज फर्स्ट को रखा है ताकि वो उस दिन को भी हम याद करें और वो कथा भी आज हम we will try and narrate that story also today. So there is a very beautiful film song of Raj Kapoor sung by Mukesh. Okay. Of course, the hero is singing, thinking about his heroine, but it's a philosophical song. And it says, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई. Okay? काहे बनाए तूने माटी के पुतले धरती पे प्यारी प्यारी मुखड़े के उजले. So he goes on. One of the stanzas, it says, गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई. He says, you are witnessing the entire problem that all of us go through. You know, गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई. I mean, how can you call yourself even God? काहे को दुनिया बनाई. Why did you create this whole universe? Why did you create this srishti? Some years back, probably one of my friends, I don't know, maybe one of my friends was not well or he was going through a difficult phase, and we generally ask when we all are in difficulty, the standard question that we end up asking is why me, and you know, why is it that we are going through such a difficult phase, and doesn't God really have karuna to kind of help us, or do all our prayers fall on deaf ears? A good story that I had narrated, somewhere I had heard probably, and I thought I'll narrate, and I thought I'll narrate now also. भगवान क्या करते हैं? सृष्टि तो बना दी, आउट ऑफ लीला, उनको खेलना था, वो हमारे जीवन के साथ खेलते रहते हैं, राइट? दैट इज व्हाई दिस सृष्टि इज इन प्लेस. मगर वो करते क्या है? आउट ऑफ एम्पल करुणा वो करते क्या है? व्हेन ही सेंड्स ईच सोल डाउन ऑन अर्थ, वो कान में ना कुछ खुसखुसाते हैं. व्हाट डज ही से? ही टेल्स, मैं खेल में तुमको भेज रहा हूं, ओके, बट यू आर नॉट सपोज, द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज नॉट टू प्ले द गेम. Okay, we are not expected to play the game. The objective is to find a way out of the game. ये खेल ये है कि खेल से बाहर कैसे निकला जाए, और खेलना नहीं है. मतलब जब जन्म लेके आ जाते हैं, शरीर के अंदर आ जाते हैं, तो हम जो भगवान ने बोला हुआ ना वो भूल जाते हैं. And we start playing the game. We start playing the game as if what is important is to play the game. भगवान बोल के भेजते हैं कि खेल के कोई जीता ही नहीं है, खेल के बाहर गिर के ही जीतता है इंसान. बट एक बार हम माया के अंदर आ जाते हैं तो वी देन गेट इनटू अ सर्कल. लाइफ, बर्थ, देन डू कर्मा, देन डेथ, एंड अगेन बिकॉज कर्मा किया है, देन यू हैव टू अगेन बेयर द फ्रूट्स ऑफ द कर्मा दैट यू हैव डन, गुड और बैड, देन अगेन यू हैव टू टेक बर्थ. सो इट्स अ सर्कल, यू नो, वी कीप ऑन गोइंग एंडलेसली. देयर इज अ मराठी सेइंग, कापूस कोंड्याची गोष्ट, which means it's an endless story. It just keeps on going, right? And purposelessly keeps on going. Some of us realize, advanced souls realize कि हम लोग जो आए गए हैं, खेल में कुछ मतलब नहीं है, हम सिर्फ घूम रहे हैं. कुछ तो अलग होना चाहिए खेल में बाहर निकलने के लिए. And then भगवान comes down, he says करुणा करके कि यार मैंने भेज तो दिया इन लोगों को, ये फंस गए यहाँ पे,
इनको कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो बाहर निकलना चाहेंगे, तो ही कम्स डाउन, टेक्स अवतार एंड कम्स डाउन एंड होल्ड्स आवर हैंड एंड टेक्स अस आउट ऑफ द गेम। इसीलिए भगवान अवतार लेके गुरु के तौर पे आते हैं और हमें सिखाते हैं। गुरु करते क्या है, आने के बाद वो हमारे सारे संचिता, प्रारब्ध, आगामी, ये मैंने पहले भी एक सेशन में कवर किया था। कर्मों के 3 प्रकार रहते हैं। संचिता इज द ओपनिंग बैलेंस, प्रारब्ध जो अभी हम भुगत रहे हैं, और जो पिछला जो बचा हुआ है और जो अब कर्म करने वाले हैं, दोनों को मिला के आगामी मतलब कैरी फॉरवर्ड होता है। सो इन अकाउंटिंग लैंग्वेज इट इज ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस, करंट बैलेंस एंड कैरी फॉरवर्ड। सो ये तीनों बैलेंसेस इज व्हाट संचिता, प्रारब्ध और आगामी। गुरु का जब संपर्क होता है, गुरु का जब करुणा हम पर पड़ती है, तो संचित और आगामी दोनों जला देते हैं, वो दे जस्ट टेक इट ऑन देमसेल्व्स। प्रारब्ध भी हमसे ले लेते हैं। तो बेसिकली व्हाट भगवान और व्हाट गुरुज डू इज वो हमारे कर्म को हमसे ले लेते हैं, अपने पे ले लेते हैं, राइट। कर्मा इज और उसका फल जो है इट्स एन एनर्जी, वो फ्लो होना ही चाहिए। जब अगर हम पे, इफ वी हैव टू एक्सपीरियंस इट, वी हैव टू एक्सपीरियंस इट। If it has to be taken away by somebody, that person has to experience it. म्हणजे which means जब गुरु लेते हैं हमसे, तो गुरु खुद भुगतते हैं, वो हमारे लिए वो भुगतते हैं वो कर्म और हमें मुक्त करते हैं। Very beautiful Marathi bhajan. It's not an abhang, it's a bhajan sung by Bhimsen Joshi. The start is टाळ बोले चिपळीला नाच माझ्या संग, देवाचीच्या द्वारी आज रंगला अभंग. That is the first stanza. One of these stanzas in middle, it has a very beautiful sentence, and whenever मैं जब भी ये सुनता हूँ, ये सेंटेंस जब भी सुनता हूँ, मुझे हमेशा एक ही चीज याद आती है, और वो होती है जो गुरु हमारे लिए जो त्याग और सेवा कर जाते हैं हमारे लिए, वही मुझे हमेशा याद आता है। That sentence is, जनसेवे पायी काया झिजवावी, घाव सोसुनिया मने रिजवावी। जनसेवा करने के लिए काया झिजव, वो अपने आप को घिस देते हैं, अपना काया घिस देते हैं। घाव को सहन करके हमारे मन को रिझाते हैं, खुद के मन को नहीं, हमारे मन को रिझाते हैं। दैट इज व्हाट गुरुज डू। द रीजन आई थॉट आई शुड गिव दिस बैकग्राउंड इज बिकॉज टुडे वी विल एनकाउंटर अ स्टोरी ऑफ गुरुदेव। एक गुरु क्या कुछ कर जाते हैं, अपने पे कितना कुछ मुश्किल ले लेते हैं हमारे लिए, ये हम आज की कहानी में सुनेंगे। कर्मा कैसे लेते हैं। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ भगवान रमण महर्षि। भगवान रमण महर्षि ना किसी को दीक्षा वगैरह देते नहीं थे, वो अपने मनमौजी थे। ही वाज अ लोनर। उन जैसे एक, मैं हमेशा ये बोलते रहता हूँ, लाखों, हजारों भी नहीं, लाखों सालों में ऐसे आने वाले एक संत भगवान रमण महर्षि है। उनके यहाँ पे ना एक इंसान आता है, बोलते हैं मुझे आप दीक्षा देना चाहिए। भगवान रमण महर्षि नेवर गिव दीक्षा टू एनीबॉडी। इवन उन्होंने जो भी गुप्त रूप में नयन दीक्षा दिया, वो सब संत बन गए। योगी राम सूरत कुमार, पप्पा रामदास, चिन्मयानंद स्वामी, ये सब उनको, जिनको उन्होंने नयन दीक्षा दी, वो सब बड़े बड़े संत, खुद संत बन गए। इतने बड़े संत रमण महर्षि थे। मगर जब भी कोई पूछता था मुझे आप दीक्षा दिए, तो बोलते थे नहीं, अरुणाचलेश्वर का प्रार्थना करो। अरुणाचलेश्वर इज द माउंटेन देयर, ओके। तिरुवन्नामलई में द मेन पॉइंट इज द माउंटेन, जिनको शिवा माना जाता है। भगवान रमण महर्षि को भी वही गुरु थे, ऐसे मानते थे वो। तो बोलते नहीं नहीं, टाल देते हैं वो डिवोटी व्हेन ही कम्स, इसे टाल देते हैं, नहीं नहीं दीक्षा वगैरह नहीं जरूरत है। बट वो ना इज वेरी इंसिस्टेंट, आप कभी किसी को देते नहीं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, छोड़ नहीं रहे भगवान को। भगवान बोलते अच्छा ठीक है बैठो, मैं दे तो दूं, मगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा क्या दोगे। तो सामने से वो बोलते हैं आप जो मांगेंगे भगवान दे दूंगा। आप मुझे अगर दीक्षा देते हैं, आप अगर मुझे अपना मेरे को मुक्त करते हैं, जीवन मुक्त, तो मैं आपको जो चाहे मैं आपको दे दूंगा, वॉट एवर यू आस्क। तो ही रिपीट्स, बोलता है मैं गुरु दक्षिणा मांग तो लूं, मगर तुम देना चाहिए, मुकरना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट टेक योरसेल्फ बैक, यू शुड गिव इट। आर यू प्रॉमिसिंग? बोलते हैं हाँ मैं पक्का, मैं नहीं मुकरूंगा। दिस डिवोटी apparently was an utter sinner, बहुत बड़ा पापी थे, बहुत उन्होंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, पुण्य बहुत कम किया उन्होंने। मगर रियलाइजेशन आ जाता है, एक लेवल ऑफ लाइफ में रियलाइजेशन आ जाता है कि जितना भी पाप किया है, अभी इसको धोएंगे कहाँ, भगवान के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे। तो इसीलिए भगवान रमण महर्षि के पास आए। तो हाथ आगे करते हैं भगवान और पूछते हैं, इस पे हाथ रखो और बोलो तुम्हारा सारा पुण्य मुझे दे दो।
तो वो खुशी खुशी बोलता है मैंने तो पुण्य इतना कम किया है, आप मेरे पुण्य मांग रहे हैं, ले लो भगवान करके ना, वो आप हाथ रख के बोलते हैं मेरा पुण्य सारा आपका। भगवान रमण महर्षि हंसते हैं और बोलते हैं पलड़ा भारी नहीं हुआ है, दक्षिणा कम पड़ रहा है, दूसरा हाथ भी दो और अपना सारा पाप मुझे दे दो। तो वो रो देते हैं, बोलते हैं भगवान आप सह नहीं पाएंगे, आप मैंने इतना पाप किया है जिंदगी में, आप सहन नहीं कर पाएंगे, प्लीज मुझसे आप ये मत मांगे। भगवान हंसते और बोलते हैं नहीं, तुमने प्रॉमिस किया है कि मैं जो भी गुरुदक्षिणा मांगूंगा तुम दे दोगे, तुम्हें अपना सारा पाप मेरे नाम करना है। वो अपना हाथ रखते हैं, रोते रोते रखते हैं, रिलक्टेंटली ही सेज मेरा सारा पाप आपको दे दिया भगवान। तो लेने के बाद भगवान बोलते हैं हो गया, तुम तो मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए, तुम सारे बंधनों से मुक्त हो गए। इस तरह से वो हमारा पाप लेते हैं। देयर इज नो डाउट भगवान रमण महर्षि also died out of cancer, right? He had a cancer of hand. Ramakrishna Paramahamsa got cancer of throat. Yogi Ram Surat Kumar got cancer of the lower parts. Sai Baba got TB. तात्या करके उनका एक डिवोटी है, उनका टीबी ले लेते हैं अपने पे। हम जब देखते हैं ऐसे स्टोरी सुनते हैं कि संतों को भी क्या फाइनली कैंसर से ही मरे, हम भी कैंसर से ही मरते हैं, या हमको भी कोई रोग होके ही हम मरते हैं, तो हम में और संतों में क्या फर्क है? वो भी फाइनली he also got some disease and they died, और हमको भी फाइनली some we also get either old age or disease or something and we also die. So हम में और उनमें क्या फर्क है? फर्क बहुत है, क्योंकि हमको जब रोग होता है तो दर्द हमें होता है फुल टू, हम we really suffer। जब संतों को रोग होता है तो शरीर को ग्रस्त होता है, the body becomes ill, वो तो जीवन मुक्त होते हैं, their detachment is complete। तो उनके लिए it is only a part of a लीला। रमण महर्षि के यहाँ पे वो जब ऑपरेशन होता है, इज लेफ्ट हैंड लेफ्ट ही हैड अ कैंसर इन हिज लेफ्ट हैंड। तो ऑपरेशन ही फर्स्ट रिफ्यूजेस, कुछ चिकित्सा नहीं करना है, रहने दो, वो तो शरीर को जो होना है होके जाने दो। तो वो बोलते हैं कि नहीं आप ऑपरेशन करना ही चाहिए, हमारे लिए आप अपने लिए आप शायद यू डोंट रिस्पेक्ट योर बॉडी, बट हमारे लिए आपकी जरूरत है, वी वांट यू, सो यू शुड गेट योरसेल्फ ऑपरेटेड। तो बोलते ठीक है डॉक्टर को बुला लीजिए। तो एनेस्थेसिस्ट भी आता है, तो एनेस्थेसिया को रोक देते हैं, बोलते हैं एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं है, जो भी करना है आपको देह के लिए करना है, मुझे तो कोई इट डजंट अफेक्ट मी। दे एक्चुअली परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ कटिंग एंड ओपनिंग द ट्यूमर विदाउट एनेस्थेसिया। एक जगह पे आके ना डॉक्टर रोक देता है एंड ही सेज भगवान आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? हमको क्या लगता है व्हेन समबडी सेज कि मुझे आप करो शरीर के लिए है, हमको लगता है कि एक्चुअली दर्द नहीं होते रहता है। बोलते नहीं दर्द हो रहा है ना, इट इज एज मच एज 1000 स्कॉर्पियंस स्टिंगिंग, इतना दर्द हो रहा है, मगर डरो मत, वो शरीर के लिए हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाट ही सेड। सिमिलरली महापेरिवा का ना कैटरैक्ट ऑपरेशन होता है, डॉक्टर बद्री करके शंकर नेत्रालय का निर्माण उन्होंने चेन्नई में किया। शंकर नेत्रालय अगर जाना हो, हॉस्पिटल ना जाना हो यही अच्छा है, मगर कभी शंकर नेत्रालय जाना हो तो आपको पता चलेगा कि वो पूरा जगत चलाने वाले ना महापेरिवा है। Right from the moment you enter, you can really sense his presence. Dr. Badri was a great devotee of Mahapariva. He started that hospital. उनका जब कैटरैक्ट ऑपरेशन होने के लिए आता है तो डॉक्टर बद्री एक्चुअली कैसे आता है ना, यू पुट दैट व्हाइट कोट एंड ग्लव्स एंड वगैरह करके आते हैं, बिकॉज he was a पीठाधिपति। He comes in धोती, ओके, स्नान करके धोती में आके वो ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन वगैरह करने के बाद स्टिचेस निकालते वक्त महापेरिवा he just gives a small wail, ऐसे बोलते हैं। बद्री डर जाते हैं, बोलते हैं महापेरिवा दर्द हो रहा है क्या आपको? बोलते हैं क्यों ऐसा लगा? तो बोलते नहीं आपने चिल्लाया, नहीं वो शरीर को हुआ रहेगा, तुम करते जाओ, is what he told. Similarly योगी राम सूरत कुमार को ना कैंसर in the bottom parts हो जाते हैं, he doesn't get treated. There have been times when he's cried out of pain, दर्द बहुत होता था उनको, okay, but he refused to get treated. बहुत end stage में he accepted that treatment होना चाहिए, मगर it was anyway late. इसी तरह से गुरुदेव भी had cancer of throat. He used to ना, गुरुदेव एक बच्चे की तरह थे, मैंने पहले ही बोला है, उनको कहीं हाथ में चोट लग जाए या कुछ हो जाए ना, तो कोई डिवोटी आ जाए, देखो देखो मेरा ना हाथ में चोट लग गया, उस दिन ना मैं पूजा कर रहा था, गिर गया, देखो चोट लग गया, ऐसे उन्हें used to flaunt his illnesses. तो कभी नेक में दर्द जब चालू हुआ तो कोई भक्त आता था तो बोलते यहाँ पे ना बहुत दर्द हो रहा है,
कुछ बोलते हैं यहाँ पे इन्फेक्शन है, तुम बहुत पूजा करते हो ना, तुम अपने हाथों से ऐसा करो, मेरे को ठीक हो जाएगा, देखो तुम ऐसे करो, ऐसे करके he used to get himself pampered. He was like a child, right? But the fact of the matter is, ये सब शरीर में वो रोग क्यों दिखाते हैं? वो एक it is an act, right? एक लीला है, एक लीला इसलिए करते हैं क्योंकि फाइनली निमित्त रख के उनको देह छोड़ना होता है, इसीलिए वो लीला करते हैं, and there is no other reason for that. Today we'll try and cover the final leg of Gurudev's story, right? Till Samadhi. मैंने लास्ट 6 weeks we've been enjoying his story. अलग अलग पर्व हमने कवर किया है. Last full week we had covered, last session we had fully covered only, हमने सिर्फ उनके disciples के बारे में काफी disciples जो उनके बहुत करीब आ चुके हैं, the special 16 उनके बारे में हमने जाना. Couple of them I left out and I think I should just take a couple of minutes to उनके बारे में बात करना चाहिए. राकाल चंद्र घोष करके एक थे जो आगे जाके स्वामी ब्रह्मानंद बने, बहुत इंपॉर्टेंट डिवोटी है, लास्ट टाइम मैंने मिस कर दिया उनके बारे में. राकाल चंद्र घोष को गुरुदेव खुद बोलते थे कि वो मेरे मानस पुत्र हैं. तो एक बार हुआ क्या कि बैठे थे निष्ठा में और गुरुदेव को विजन आता है कि उनके गोद में एक बच्चा खेल रहा है, तो बहुत खुश हो जाते हैं और हृदय को जाके बोलते हैं, हृदय तुम्हें पता है मुझे ना आज विजन आया कि मेरे गोद में बच्चा खेल रहा है. तो हृदय बोलते हैं अच्छा मामा कुछ नहीं, तुमको बच्चा होने वाला है, बेटा होने वाला है. तो बोलते बदमाश जाओ, मैं सन्यासी हूँ, मेरे को कहाँ बेटा वगैरह होने वाला है, कुछ नहीं, ये शायद माँ मुझे विजन दे रही है कि somebody, some special devotee is coming. और उस समय राकाल चंद्र घोष walks in, and then he realizes that it is basically the same person. राकाल चंद्र घोष वो भी ना इस तरह से गुरुदेव से प्यार करते थे as if like a बच्चा, like a बेटा. वो 19-20 year old थे, मगर वो जब आ जाते थे ना तो गोद में बैठ जाते थे. 19-year-old boy, okay, sitting in Gurudev's गोद like a 5-year-old kid, गोद में बैठ जाते थे, कंधे पे झूल देते थे, okay? ऐसा उनका प्यार, मतलब वो पिताजी के जैसे ही उनको प्यार करते थे. ऐसे एक बहुत बड़े संत जो आगे जाके ब्रह्मानंद बने. ब्रह्मानंद becomes Swami Vivekananda makes him the first president of the Ramakrishna order. The entire Ramakrishna मठ में जो first president हुए वो ब्रह्मानंद स्वामी बने. ऐसे एक महान, I thought I should cover. एक बार he was a very silent saint, वो ना ज़्यादा बात नहीं करते थे. Well, स्वामी विवेकानंद was a more rajasic, वो काफी lectures वगैरह लेते थे. तो one of the devotees वो आके पूछते हैं, हमने कभी ब्रह्मानंद स्वामी को सुना नहीं, आपको तो हमेशा सुनते हैं. तो बोलते उनको ना स्वामी जी बोलते हैं आप ना उनको सिर्फ देखते रहो, वो एक डायनेमो की तरह है, वो अगर बाजू में रहेंगे ना तो हम लोग ऑटोमेटिकली चार्ज होते रहेंगे. दैट इज व्हाट स्वामी जी हैज टोल्ड अबाउट ब्रह्मानंद स्वामी. ऐसे एक बड़े डिसाइपल थे. देयर आर आल्सो फ्यू फीमेल डिसाइपल्स. गोपाल की माँ, उनका नाम पता नहीं है, शी वाज कॉल्ड एज गोपाल की माँ. एक्चुअली उनको फैमिली में कोई नहीं था, शी इवन डिडंट हैव अ चाइल्ड, नो हस्बैंड नो चाइल्ड. हस्बैंड कम उम्र में ही गुजर जाते हैं, मगर उनके पास एक बाल गोपाल का मूर्ति थी जो आराध्य देव करके वो पूछते थे, इसलिए उनका नाम ही गोपाल का माँ पड़ गया. She was a great devotee. There was something called as a गोलप माँ, गौरी माँ, योगिन माँ, ऐसे काफी lady devotees also Gurudev had. I will not get into the details because उनके disciples के बारे में कवर करना ये खुद एक चार सेशंस चला जाएगा. इतने उनके disciples and special disciples and ऑल्सो उनके स्टोरीज है, वो कैसे आए गुरुदेव के पास, वो उनका पास्ट क्या है, वो कैसे आए एंड हाउ ही बिकेम स्पेशल, वो सब एक अलग स्टोरी है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. वी विल कवर द स्टोरी अहेड राइट नाउ एंड दैट आई थिंक इज इंपॉर्टेंट. इट इज 1885 समर सीजन. 1885 इज द ईयर एंड समर सीजन अराउंड अप्रैल मई के आसपास है. कोई डिवोटी कलकत्ता से आ रहा है, पता चला तो बोल देते हैं कि मुझे मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ. तो उनको आइसक्रीम बहुत पसंद था, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम. तो आइसक्रीम लेके आते हैं. आइसक्रीम खाने के बाद उस रात को देयर इज अ स्लाइट थ्रोट पेन दैट स्टार्ट्स ऑफ. यू नो कॉफ वगैरह कैसा होता है तो हमको कैसे इरिटेशन होता है, तो वैसे वो चालू हो जाता है. धीरे धीरे इट स्टार्ट्स दैट पेन, दैट इरिटेशन, दैट सोर थ्रोटनेस बिकम्स मोर. ये लोकल वैद्य कर रहे हैं, यू नो दे स्टार्ट गिविंग काढ़ा वगैरह पिलाते हैं, दे ट्राई टू उपचार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते उसमें. तो एक बार उन लोग सोचते हैं कि ठीक है ये ठीक नहीं हो रहे. दक्षिणेश्वर में कोई बड़े डॉक्टर भी नहीं है, बिकॉज उस जमाने में दक्षिणेश्वर वाज अ लिटिल अवे फ्रॉम कलकत्ता. ओके, अभी कलकत्ता शहर बहुत बड़ा हो गया है एंड सबब से बहुत पास है, मगर दोस डेज इट वाज अ लिटिल फार ऑफ. सो बोलते कलकत्ता में जाके कोई डॉक्टर को दिखा देंगे हम, सो दैट एटलीस्ट यू नो बता देंगे तो मेडिसिन वगैरह देख ले लेंगे.
तो गुरुदेव को भी लेके सम डिसाइपल्स दे गो, वहाँ पे जाके डॉक्टर को मिलते हैं। डॉक्टर को मिलने के बाद वो कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं। ये मेडिसिन वगैरह लेके डॉक्टर को मिलके आते आते 2 बज जाता है। इट्स ऑलमोस्ट वेल पास लंच टाइम। तो सबको भूख लगना चालू हो जाता है। तो भूख लग तो, मगर सारे सब 19 ईयर ओल्ड 18 ईयर ओल्ड, उस जमाने में पॉकेट मनी वगैरह था नहीं, सो नोबडी हैज मनी। तो सब लोग सबको भूख लग रहा है, गुरुदेव को भी भूख लग रहा है, एंड एवरीबडी सेइंग अभी क्या करें, पैसा तो है नहीं और दक्षिणेश्वर पहुंचने में टाइम लगेगा, वहां पे तो प्रसाद बना रहेगा बट वहां पे पहुंचने में टाइम लगेगा। सो देयर वाज एन ओल्ड लेडी इन द ग्रुप। तो बोले मेरे पास 4 आना है, वो हलवाई के पास जाके मैं कुछ मिठाई ले लेती हूँ, हम लोग सब लोग बांट के खा लेंगे, इट विल होल्ड अस, दक्षिणेश्वर बाद में जाके प्रसाद खा लेंगे। तो 4 आना का कुछ हाथ भर के शी व्हाटएवर शी बाइज अ फ्यू स्वीट्स। गुरुदेव बोलते अच्छा मिठाई लेके आए हो, दे दो मुझे करके। ही स्टार्ट्स ईटिंग 1 2 3 5 7 सारा मिठाई खा लेते हैं और किसी से बांटते नहीं है। ही डजंट डिस्ट्रीब्यूट इट एनीबॉडी, एवरीथिंग इज ईटन। सब लोग देख रहे हैं, अभी बांटेंगे तभी बांटेंगे, सारा का सारा गुरुदेव खा लेते हैं। बाजू में पानी रहता है, पानी पी के डकार छोड़ते हैं। द मोमेंट ही बर्प, सब लोग ने डकार छोड़ा, एवरीबॉडी स्टमक वाज फुल एट दिस इमीडिएट इंस्टेंट, सिमिलर टू द मैनर इन विच कृष्णा डिड जब वनवास के लिए जब पांडवास निकलते हैं, दुर्वासा जब आते हैं, कम्स विद 100 डिसाइपल्स, दुर्योधन ही भेजता है कि जाओ तुम युधिष्ठिर से मिलो, वहां पे है, पता है ना कि when he come, if they come with 100 disciples, लोग खिलाएंगे कैसे, ये लोग तो वनवासी है। तो द्रौपदी कृष्णा को याद करके कृष्णा आ जाते हैं, छोटा सा निवाला वो लेते हैं मुंह में, वहाँ पे ऑल द 100 पीपल आर ऑलरेडी फुल स्टमक। तो उस तरह से वो एक लीला करते हैं। डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि योर थ्रोट इज इन बैड स्टेट, आप ज्यादा बोला मत करो, भजन वगैरह गाना नहीं चाहिए, आप बहुत भाव समाधि में चले जाते हैं वो सब नहीं करना चाहिए, आप ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, भजन नहीं गाना चाहिए। बोलते भाव समाधि में जाना मेरे हाथ में है ही नहीं, वो मैं क्या समझाऊं आपको डॉक्टर, मेरे हाथ में है ही नहीं, इट इज नॉट समथिंग आई कैन कंट्रोल। तो बोलते हैं ऑल डिसाइपल्स से आप एटलीस्ट बात मत किया करो, यू नो, डोंट टॉक। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज ही यूज्ड टू सिट इन दक्षिणेश्वर और कोई डिवोटी मिलने आ जाता है, राइट, तो अच्छा तुम कहाँ से आए हो, ढाका से आए हो, अच्छा बैठो बैठो बैठो, एंड ही यूज्ड टू स्टार्ट ऑफ, कुछ प्रवचन करते, कुछ उनके साथ भगवान के बारे में बात करते थे। तो डिसाइपल्स आते और बोलते गुरुदेव आप वापस बात करना चालू कर दिया, अरे पता है ये ढाका से आया, मुझसे मिलने आया है, इसको मैं भगवान के बारे में इसके साथ नहीं बात करूंगा कैसे चलेगा, करके ऐसे दिन भर बात करते थे। ओके, यूज्ड टू कंटिन्यूअसली टॉक एंड टॉक, so much so that the moment he got ill, till the time he took samadhi, Gurudev, apart from the time he slept in the night and apart from couple of hours in the afternoon, he spoke continuously in spite of being told कि जितना बात करेंगे आपको तकलीफ होगी। गुरुदेव ने कंटिन्यूअस बात किया, कंटिन्यूअस अनुग्रह किया, कंटिन्यूअस करुणा की लोगों पे। That is why I said जनसेवे पाई काया झिजवावी, घाव सोसुनियम मने रिजवावी। वो खुद पे घाव सोचते, he was bearing that wound, but he ensured that he did करुणा। वो बोले कि ये मैं करुणा कभी रोक ही नहीं पाऊंगा, ये मुझसे मिलने आ रहे हैं, इनका मैं उद्धार करके ही रहूंगा। उनका जो ये 1.5 साल में उन्होंने जितना लोगों को ऊपर करुणा किया है वो अनगिनत। There are hundreds of people whose life he touched in this 1.5 years. Then they all think कि दक्षिणेश्वर से हम हर बार कोलकाता जाना मुश्किल है, तो कुछ दिन के लिए विल शिफ्ट टू कोलकाता, सो दैट वहां पे डॉक्टर के साथ जाना मिलना वगैरह इट बिकम्स इजी। सो दे शिफ्ट टू अ स्मॉल प्लेस इन कोलकाता। बिकॉज इट्स अ स्मॉल प्लेस, गुरुदेव डजंट लाइक इट। गुरुदेव डजंट लाइक नॉट बिकॉज इट्स अ स्मॉल प्लेस, ही डजंट लाइक इट बिकॉज इफ इट्स अ स्मॉल प्लेस हिज डिवोटीज कांट बी कंफर्टेबल। वो लोग जब भर भर के जब आते हैं, डिवोटीज जब आते थे, मिलने आते थे, भजन गाने के लिए, प्रवचन करने के लिए, वो जगह अनुकूल नहीं था। तो वो ना गुरुदेव निकल के बलराम बोस के घर पे चले जाते हैं। देन उसके बाद देन दे शिफ्ट टू अनदर प्लेस व्हिच इज श्याम पुकुर करके, थोड़ी दूर में एक और जगह थी। इट वाज अ लिटिल बिगर हाउस, भजन करने के लिए जगह, प्रवचन करने के लिए जगह ऐसे था। अगर भक्त लोग आते हैं उनके लिए बैठने के लिए यू कैन मेक अरेंजमेंट्स, इस तरह से वो जगह था। तो वहां पे जाके थोड़े दिन गुरुदेव रुक जाते हैं। इतने में होता क्या है कि वो उनका डिसीज हैज स्टार्टेड ग्रोइंग, the infection in the throat had started growing. उस जमाने में there was a very big doctor called डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। बहुत कॉस्टली भी थे, बहुत फेमस भी थे और बहुत सीनियर भी थे। तो वो उनको ले आते हैं। वो उनको, he was a person who believed in God, but typical ब्रह्म समाजी, he was saying निराकार रूप ही important है,
ये सब भजन विजन वगैरह आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल। तो गुरुदेव के संपर्क में आते ही एक दो बार बात करते ही स्टार्ट्स गेटिंग अट्रैक्टेड टू गुरुदेव, और रोज बैठते थे। पहले एक बार आना चालू हुआ, फिर दिन में 2 बार, फिर दिन में 3 बार, फिर जब भी आते थे ही यूज्ड टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन ही यूज्ड टू टेल, गुरुदेव आपको ना किसी से बात नहीं करना है, मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आपका गला खराब हो जाएगा, आपको किसी से बात नहीं करना है, सिर्फ मेरे से बात कीजिए भगवान के बारे में। That is what he used to say. He also becomes a great devotee of Gurudev. एक बार गुरुदेव सीज नरेन एंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ही इज डूइंग, बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं ये लड़का आगे जाके बहुत बड़ा काम करेगा, इज व्हाट ही सेज। तो गुरुदेव बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, अगर अद्वैताचार्य के कहने पे महाप्रभु का अवतार हुआ तो इसके कहने पे ये आया है, इज व्हाट ही सेड टू हिम। ऑल दिस होल मैं जो भी कर रहा हूँ बिकॉज ही हैज रिक्वेस्टेड, मैं इसके लिए ये पूरा अवतार का कार्य चल रहा है, इज व्हाट ही इंट्रोड्यूसेस। शारदानंद करके एक डिवोटी है, इज कॉलेज फ्रेंड विद विवेकानंद, बोलते हैं नरेन के बारे में तो ऐसे बोल तो दिया है इन्होंने, बट वो तो हमारे कॉलेज का फ्रेंड था, तो हमने सोचा ये ऐसे गुरुदेव इनके बारे में क्यों बोल रहा है। आगे जाके फिर he says this is something he says later on, he says now I understand the work that Swami Vivekananda has done and the future will also end up proving what he could manage। इस दरमियान क्या होता है, डॉक्टर का विजिट्स चालू हो गया है, बट his health is not still really improving। so लोग क्या करते थे, डिसाइबल्स नरेन बोलो या शशि बोलो या लाटू बोलो, यू नो दिस पीपल इज टू कम बी देयर फॉर अ व्हाइल, उनका शुश्रूषा करते वापस उन घर चले जाते, कोई और आ जाता। तो देन विवेकानंद, देन नरेन थॉट फॉर अ व्हाइल, ही सेड ये चलेगा नहीं ऐसे। ही सेज जब तक गुरुदेव का तबीयत ठीक नहीं हो जाता है, आई एम गोइंग टू स्टे पुट हियर, आई एम गोइंग टू स्टे हियर। एंड देन ही आस्क्स हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बोलते कौन कौन मेरे साथ यहीं पे रहेगा। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो यू हैव टू इमेजिन, ओके, मेनी ऑफ दीज दे हैव गॉन अहेड एंड टोल्ड देयर स्टोरीज। घर पे जो घर वाले जो थे वो बोलते थे नहीं वहां पे जाने की जरूरत नहीं, प्यार से समझाते थे, गुस्सा करके समझाते थे, कभी कभी दरवाजा भी बंद कर देते थे, लॉक कर देते थे, फिर भी दे यूज्ड टू कम आउट एंड देन कम टू स्वामी जी, कम टू गुरुदेव एंड देन दे यूज्ड टू स्टे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों, सी फॉर एग्जांपल अगर आज मेरा बेटा, यू नो, इफ यू वर टू टेल मी कोई स्वामी जी है, मैं जाता हूँ, मैं वहां पे जाके रहता हूँ, इवन आई विल अपोज, राइट। ये बहुत स्टैंडर्ड है, राइट। एज पेरेंट्स आई वुड बी सेइंग यार पढ़ने का उम्र है, तुम पढ़ाई करो, तुम कहाँ कोई गुरुदेव और स्वामी जी के पीछे पड़े हो, इज अ वेरी स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स एनी पेरेंट विल गिव, इवन वी माइट गिव द सेम थिंग। व्हाट दे डिड इज अप्रिशिएटेड टुडे बिकॉज हम लोग वो हाइंडसाइट में देख रहे हैं, वो जाके उन्होंने गुरुदेव का सेवा किया, वो इतना बड़ा उन्होंने पुण्य कमाया, वो सारे के सारे सन्यासी और संत बन गए, ये आज हम जानते हैं, राइट। मगर जब उन्होंने वो किया, वो सिर्फ गुरुदेव के विश्वास से किया, राइट। एंड दैट इज व्हाई देयर एफर्ट एंड देयर सर्विस इज दैट मच मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम अपने आप को उनके शूज में जब रखेंगे ना, तब पता चलता है कि वो कितना बड़ा सेवा कर गए हम लोग। इस दरमियान क्या होता है, हृदय who was there with him all this while, उनसे कुछ गलती हो जाते है, अपचार हो जाता है, उसको दक्षिणेश्वर से एक्चुअली निकाल देते हैं, and he goes away. So the only people who are serving Gurudev is these 16 to 20 people, disciples, and of course Sharda Devi Ma also is doing her whatever she can. Sharda Devi Ma, what she used to do is सुबह उठ जाती थी, खाना पकाती थी, ensure that you know प्रसाद, जो भी पूजा के लिए प्रसाद, गुरुदेव के लिए खाना, एंड ऑल दैट शी यूज्ड टू प्रिपेयर, एंड लोग सब आने के पहले शी यूज्ड टू गो इनटू हर रूम एंड देन वहां पे वो जब ध्यान करती थी। शी यूज्ड टू नॉट कम आउट व्हेन देयर आर लॉट ऑफ क्राउड, दैट इज व्हाट शारदा देवी यूज्ड टू ऑलवेज डू। सो द एंटायर डे व्हाटएवर एक्टिविटी नीड्स टू बी डन, इट वाज ऑलवेज डन बाय नरेन एंड ऑल दिस डिसाइपल्स। नरेन ने क्या कर दिया था, सबको ड्यूटी पे लगा दिया था, तुम ये जगह साफ करने का ड्यूटी तुम्हारा है, खाना बनाने का ड्यूटी तुम्हारा है, राइट, सुबह का सेवा करना तुम्हारा है, दोपहर का तुम्हारा है, रात का तुम्हारा है, ऐसे 24 आवर्स का ड्यूटी he had fixed for everybody. What Naren used to do, he used to do his part of the duty, and then when it used to be his sleeping time, he used to see whether everybody else is doing their duty. Okay, इस तरह से day and night Naren has done his सेवा to his guru. गुरु सेवाचा संकल्प हेची माझं पूर्ण तप, that is what तुकाराम महाराज said. गुरु सेवा करना इतना बड़ा भाग्य है। तुकाराम महाराज goes one step ahead, he says गुरु सेवा करना, ऐसा संकल्प करना भी बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मन में रखना कि मुझे गुरु सेवा करना है, ये कहना भी बहुत बड़ी बात है, is what संत तुकाराम says, that itself is a
तपस इज व्हाट ही इज टोल्ड. इसमें जो एक ग्रुप है, गिरीश चंद्र घोष, राम, डॉक्टर राम, मनमोहन मित्रा, इन लोग सब लोग बोल रहे हैं कि ये एक अवतार है, राइट, ही इज अ रियल अवतार. ये खुद को अगर क्योर करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर कर नहीं रहे क्योंकि ये एक लीला है इनका, ताकि हम सब एक इकट्ठा आ जाए. ही ऑलवेज वांटेड ऑल ऑफ अस टू बी टुगेदर. एक सत्संग में हमेशा रहने के लिए हम अपना सेवा करके घर चले जाते थे, वापस नहीं आते, मतलब एक दो दिन के बाद आते थे, तो आना जाना लगा रहता था. बट ही वांटेड अस टू बी देयर कंटिन्यूअसली 365 डेज 24/7. इसलिए उन्होंने ये लीला रची है, इज व्हाट सम ऑफ देम फील. नरेंद्र सेज व्हाटएवर इज दैट, हम एक देह का अगर अवतार ले लिया है, वो इट विल फॉल इल, इट इज आवर ड्यूटी टू टेक केयर. वो लीला कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अवतार है नहीं है मुझे नहीं पता. वो अगर बीमार है तो गुरु की सेवा करना हमारा कर्तव्य है. अगर गुरु नहीं बचे, उसके पहले हमको वो बन जाना है जो वो हमें चाहते हैं. व्हाटएवर दे वांट, ही वांट्स अस टू बिकम, हमें वो बन जाना है. उस मार्ग में हमें जितना वेग से चल सके, उस मार्ग में हमें जितना आगे बढ़ सके, वो गुरु जब तक है तब तक हमें वो, we have to show that speed to him. इस तरह से they have started living together. Now they have come to understand that this is a disease which is a very major disease. नरेंद्र को भी पता चल जाता है, डॉक्टर भी बता देते हैं कि इट इज अ कैंसर एंड ये इलाज होने वालों में से नहीं है, ये बढ़ते जाने वाला है. आयुर्वेदा में उसको रोगिणी बोलते हैं. दैट इज द नेम ऑफ द डिसीज फॉर कैंसर. तो नरेंद्र इज वेरी स्टेडफास्ट. बी इट कैंसर, बी इट एनीथिंग एल्स, गुरु की सेवा करना है और इस तरह से सेवा करना है कि वो ठीक हो जाए. अगर ठीक नहीं होना है तो भी हम कोशिश ऐसे ही करेंगे कि वो ठीक हो जाए. तो he is steadfastly working towards that. Some of them start feeling that this probably is a contagious disease, because क्या होता है ना, the symptoms that he was having is that he used to spit blood. Throat में था ना, तो he used to spit blood, which is very similar to TB, right? तो some devotees ना दूर दूर से सेवा करते थे, मगर they used to try and keep a little distance from Gurudev. तो ये नरेंद्र देख लेते हैं और उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है. तो वो बोलते हैं ऐसे दूर दूर से क्या सेवा करना है, गुरु सेवा थोड़ी हुआ, जाके पास जाके हाथ लगा के सेवा करो. उनके सामने हाँ हाँ बोलते हैं, लेकिन they used to always maintain a distance. ये थोड़े दिन for some days ना, नरेंद्र watches this and then says they have to put an end to this. एक दिन गुरुदेव used to like रवा का खीर, okay? तो पूरा का पूरा now he had left solid food because he was not able to eat. He had gone into the द्रवा आहार, मतलब द्रवा आहार means liquid. More and more of liquid he started having. कभी कभार थोड़ा रवा का खीर बना लेते थे. एक दिन रवा का खीर खिला रहे हैं, he drinks a little and पी नहीं पाते हैं, तो he spits out. और जब स्पिट करते हैं ना, तो बाउल में थोड़ा खून के साथ आ जाता है और वो साइड में रखा होता है. नरेंद्र देखते हैं यहाँ पे कुछ डिसाइबल्स खड़े हैं, वो दूर खड़े हैं, they are not even touching the bowl. नरेंद्र goes, he takes it and he just drinks it along with that blood. वो बोलते हैं ये गुरु का प्रसाद है, कुछ नहीं होगा मुझे, इस विश्वास से तुमको काम करना है गुरु का. ये जब मैंने इंस्टेंस मैंने सुना ना, मैंने तो रोंगटे खड़े हुए. मैं ये कौन सा लेवल की गुरु भक्ति है. हमने एकनाथ महाराज के भी हमने कथा में हमने देखा था, ही ड्रिंक्स द फ्लेम ऑफ हिज गुरु. दिस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ गुरु भक्ति. ये गुरु भक्ति हम सिर्फ, हमें तो सोच के भी इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है. वो लेवल की गुरु भक्ति नरेंद्र स्वामी विवेकानंदा कर गए, इसीलिए वो स्वामी विवेकानंद बने, राइट. अगर आज जगह प्रसिद्धि है, उनको इस तरह से मान मर्यादा मिलता है विवेकानंद स्वामी को, इट इज बिकॉज ऑफ दैट अनफ्लिंचिंग डिवोशन टू हिज गुरु. दिस टाइप ऑफ भक्ति हमारे लिए है नहीं, हम तो कर भी नहीं पाएंगे. बट आई थिंक आई शुड पुट अ राइडर कि ऐसे ऐसे भक्ति तो हम सोच के हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ऐसी भक्ति नरेंद्र कर गए हैं. उसके बाद दे ऑल स्टार्ट डूइंग दी सेवा मोर इन डिटेल. पास जाके दे स्टार्टेड डूइंग द पूजा, अपना सेवा. इस दरमियान 1885 का दुर्गा पूजा, कि दिस इज ईयर 1885, ओके, वी हैव टू रिमेंबर दैट. 1885 में दुर्गा पूजा होता है. तो सुरेश करके हमने सुना था, सुरेंद्रनाथ, एक प्रॉपर ड्रंकर्ड, वुमनाइजर, कैरेक्टरलेस पर्सन, टोटल पापी, उसका भी उद्धार किया था उन्होंने. सुरेंद्रनाथ, सुरेश करके हमने लास्ट इसमें कवर भी किया था.
he started keeping दुर्गा पूजा in his home. तो वो दुर्गा पूजा के समय वो दुर्गा पूजा अरेंज करते हैं और बोलते हैं कि गुरुदेव को आना चाहिए. तो बाकी सब डिवोटीज बोल देते हैं कि गुरुदेव नहीं आ पाएंगे, तो बहुत दुखी हो जाते हैं. वो becomes very sad. मैंने पूजा रखा है, गुरुदेव के कहने से मैंने रखा है और गुरुदेव मेरे घर पे नहीं आएंगे. कलकत्ता में रहते हुए बहुत दुख हो जाते हैं. पूजा वगैरह करते हैं और एक घर के कोने में जाके बैठ के हाथ सिर पे हाथ रख के बैठ के रो रहे. गुरुदेव का वहां पे श्यामपुकुर में है, वहां पे समाधि स्थिति में चले जाते हैं. उठ के बाहर आके बोलते हैं, वो सुरेश है ना, उसको जाके कोई बोल दो घर में देवी का अलंकार बहुत सुंदर है, हरा रंग बहुत बहुत जच रहा है. तो बोलते हैं गुरुदेव आपको कैसा पता है? बोले नहीं मुझे पता है, देवी ने मुझे दर्शन दिया है, तुम जाके मिलो. वो ना वो अंदर के रूम में सिर पे हाथ रख के बैठा है, उसको रो रहा है, उसको जाके थोड़ा समझा दो कि मैंने दर्शन ले लिया. जाके बोलते हैं, सुरेश बिकम्स वेरी हैप्पी. सूक्ष्म रूप ही सही, लेकिन गुरुदेव ने आके दर्शन लेके गए हैं. कुछ दिन के बाद वहां पे बंगाल में एक संप्रदाय है कि काली पूजा किया जाता है. इट इज अ बंगाली संप्रदाय, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. तो देयर इज अ डिवोटी, अ वेरी फेमस पर्सन, वो बोलते हैं कि मैं घर पे करता हूँ काली पूजा, आप सब यहाँ पे आज यू ऑल आर लिविंग हियर यू नो इन श्यामपुकुर, गुरुदेव इज ऑल्सो हियर. Instead of me doing it at home, I would want to do it here in Gurudev's presence. सब लोग आप लोगों के समक्ष में ये पूजा करना चाहता हूँ. तो बाकी सब बोलते कि मत करो, because the moment he sees काली माँ वो भाव समाधि में चले जाएंगे और डॉक्टर ने बोला कि भाव समाधि में नहीं जाना है, तो we'll try and avoid. वो खुद जाएंगे वो अलग बात है, मगर हमारे तरफ से तो हम लोग इतना कोशिश कर सकते हैं कि he doesn't get into that kind of an. वो कृष्ण को देखते, राम के बारे में सुनते, कोई पैर को ऐसे क्रॉस रख के खड़ा रह जाते, अरे मेरी कृष्णा करके used to go in भाव समाधि. Right? That is something we have seen with Gurudev. वो मेघ, the dark clouds को देख के at the age of 6-7 he fell down saying that मेरा कृष्ण का याद आ गया मेरे को. तो at least let's not do that. But there are others saying नहीं काली पूजा is an important one, we should, and आराध्य देव है गुरुदेव का, हम लोग पूजा करना चाहिए. तो गिरीश वगैरह क्या बोलते हैं कि ठीक है हम लोग काम करते हैं, सारा तैयारी रख लेते हैं, let us not keep any मूर्ति या प्रतिमा नहीं रखते हैं, पूजा के लिए सामग्री तैयार कर लेते हैं. अगर गुरुदेव ने आज्ञा दे दी तो आखिर के वक्त we should not be, it should not rush, so we will keep everything ready. अगर वो अनुमति दे देते हैं तो करना चालू करते हैं, नहीं तो we will just keep quiet. उस दिन सुबह से बात ही नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव मौन है, ध्यान के रूप में बैठे हैं. सुबह का दोपहर हो गया, पूजा का समय बीता जा रहा है. एवरीबडी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या इंडिकेशन है, गुरुदेव हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, करने हैं पूजा, नहीं करना है पूजा. ऐसे जब बैठे हैं तो गिरीश who had told कि ठीक है पूजा करते हैं लेकिन will not put any, keep any विग्रह or anything, उनको वो उठते हैं और सडनली उनको सूझता है, वो उठते हैं और बोलते हैं अरे क्या भूल कर रहे हैं हम. बोलते बाकी के पूछते हैं क्यों, क्या हुआ? गुरुदेव हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अरे मूर्खों, जिस काली माँ का पूजा कर रहे हैं क्या वो तुम्हें दिख नहीं रही है? ऐसे करके वो फूल उठाते हैं, गुरुदेव के चरण में डालते हैं, जय काली माँ करके नमस्कार कर देते हैं. Then they realize that Gurudev himself is taken काली रूप. Everybody does नमस्कार, जय काली माँ, जय काली माँ. On that day Gurudev becomes straight body रख के, कभी वो ऐसे मुद्रा में बैठे नहीं हैं. One hand as Abhaya Hasta and the other as Varada Hasta. This is called Abhaya and this is called Varada Hasta. वो हमेशा मृगी मुद्रा पकड़ते थे, ऐसे मुद्रा में कभी बैठे नहीं है. ये मुद्रा टिपिकल दुर्गा परमेश्वरी का है. ओके, अभया एंड वरदा इज बेसिकली दुर्गा परमेश्वरी का है. उस रूप में ही शोड दैट काली माँ इज व्हाट गुरुदेव इज. ऐसे उनको सबको उन्होंने उस दिन विजन दिया. ये ऐसे एक लीला उन्होंने श्यामपुकुर में कर दिखाया. इस दरमियान क्या होता है, द डॉक्टर्स आर सेइंग कि कलकत्ता का वेदर इज प्रोबेबली नॉट सूटिंग हिम. कलकत्ता शायद तब से ही पोल्यूटेड था, अभी तो पता नहीं कैसा है, बट प्रोबेबली इट वाज पोल्यूटेड इवन देन. तो बोलते हैं कि वी शुड गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज मोर ऑफ नेचर. दक्षिणेश्वर तो था ही, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट इट हैज टू बी आल्सो क्लोज टू कलकत्ता. सो दे ऑल देन गेट शिफ्टेड टू अ प्लेस कॉल्ड काशीपुर गार्डन्स. दिस प्लेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज गुरुदेव का समाधि इस जगह पे होता है. बंगाल में कोसीपुर बोलते हैं, कोसीपुर. ओके, but we'll call it as Kashipur, Kosipur या क्या, I don't know what is the pronunciation. It starts with Kossipore, okay, but basically Kashipur. तो काशीपुर गार्डन्स में शिफ्ट करते हैं. वहाँ पे बड़ा गार्डन है, 5 acres पे spread, a big bungalow,
यू नो ब्यूटीफुल। गुरुदेव जाते ही बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब इतना नेचर है यहाँ पे एंड बड़ा जगह है, भक्तों के लिए भी काफी जगह है एंड यू नो बिकम्स वेरी हैप्पी। उस जमाने में द रेंट फॉर दैट प्लेस वाज 80 रुपीज, ओके, एंड सुरेश वाज पेइंग फॉर दैट। विल कम टू दैट लीला आल्सो। तो यहाँ पे जाने के बाद एवरीबडी सेटल्ड एंड देन दे सडनली फील कि बाबा ये जगह पे मेंटेन करना मुश्किल है, पैसे का भी मदद चाहिए, फिजिकल हेल्प भी चाहिए, राइट। गुरुदेव को मेंटेन करना, दैट प्लेस को मेंटेन करना, गुरुदेव का सेवा करने के लिए यू नीड फिजिकल हेल्प। वो प्लेस को रन करना, देयर आर एक्सपेंसेस, पीपल कम एंड गो, प्रसाद बनाना, यू नो, उसके लिए यू नीड फाइनेंशियल हेल्प। तो इन लोग का ना मीटिंग चलता था। ये क्या होता था ना, देयर इज टू बी डिवोटीज, देयर इज टू बी फ्यू डिवोटीज। उसे मेरा ना एक एक्स्ट्रा घर है, मैं उसको मॉर्गेज रख देता हूँ। कोई बोलता था मेरा वाइफ का ज्वेलरी में मॉर्गेज रख देता हूँ। कोई बोलता था मेरा मेरा खर्चा मैं कम कर देता हूँ, पैसा बचा के मैं गुरुदेव को देता हूँ। ये ना इंपॉर्टेंट है, व्हाई दीज इंस्टेंसेस आर इंपॉर्टेंट। हम आज भी हमको अगर पता चले कोई संत है तो हम शायद ये सब ना करें, राइट। हम इवन इन स्पाइट ऑफ वी बीइंग बिलीवर्स इन गॉड, वी बीइंग बिलीवर्स इन सेंट्स, हम लोग सोचेंगे अरे ये सच्चा संत है क्या, नहीं है क्या, इनके लिए क्यों करें, वो अगर संत है तो खुद ही मैनेज कर ले, यू नो, ये सब हमारे मन में आने वाले ख्याल है, राइट। दीज आर ऑल आवर थॉट्स। मगर ऐसे निस्वार्थ रूप में लोग उनको मदद करने के लिए तैयार थे। एक जगह पे एल्डर्स लोगों की मीटिंग, राम, गिरीश, यू नो, मनमोहन मित्रा, इन लोगों का एक मीटिंग बनता था कि ये पूरा जो व्यवस्था है इसको कैसे संभाला जाए। हम तो वो यंगस्टर्स के जैसे सेवा तो नहीं कर पाएंगे, हमारा गृहस्थ है, हमको देखना है, बट हम अपने पैसे के बल से मदद कर सकते हैं। जो यंगस्टर्स हैं लाइक यू नो नरेन, शशि, लाटू, यू नो ऑल दिस पीपल, शरद, इन लोग सब लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है बट हम देह के रूप में हम लोग सेवा कर सकते हैं, तो दे डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क। तो ये सब ना डिस्कशन ना गुरुदेव के कान पे पड़ता है, तो गुरुदेव को टेंशन आ जाता है कि इन लोग क्या पैसा कैसे वसूल कर रहे हैं। तो बलराम बोस को बुलाते हैं, बोलते हैं मैं जब पुजारी था दक्षिणेश्वर में, महीने का मुझे 7 रुपया मिलता था, मैं तो कभी यूज नहीं किया डब्बे में, वो पूरा सारा का सारा मेरे लिए यूज कर लो। आज के बाद ये देह के लिए जो भी खाना है बलराम तुम्हें देखना है, इज व्हाट ही सेज। बलराम स्टार्ट्स क्राइंग, बोलते हैं ये सेवा मुझे मिला गुरुदेव, अहो भाग्य है, मैं जरूर ये करूंगा। सिमिलरली कॉल्स सुरेश एंड सेज इस जगह का जब तक हम यहाँ पे है, इस जगह का जो भाड़ा है, जो रेंट है, सुरेश तुम दे दो। सुरेश ends up paying the rent of 80 rupees till such time that काशीपुर गार्डन्स में जब तक गुरुदेव थे तब तक he only paid the rent। ये गुरुदेव या संत ऐसे क्यों करते हैं? बाबा को भी आदत है, बाबा के पास अगर जाते थे ना, you would have read सच्चरित्र एंड ऑल, मुझे 1 रुपया दे दो, मुझे 5 आना दे दो, मुझे 4 आना दे दो, ऐसे ना मांगते थे। बेसिकली ये किसी जन्म का ऋण है जो वो लेते हैं, राइट। किसी को देना है, सम मनी टू बी गिवन टू समबडी। हमने महापरिवार के भी एक स्टोरी में देखा था, वेरी ऑड फिगर 1243 he asks from a chartered accountant, right? तो ये क्यों करते हैं? बिकॉज उनको पता है, वो त्रिकाल ज्ञानी रहते हैं, उनको पिछला अगला सब पता रहता है। सो दैट इज व्हाई दे गो ओनली टू स्पेसिफिक पीपल, जिनका ऋण बाकी है वो उनके पास जाके वो ऋण का चुकता उन लोग मांगते हैं। तो इसीलिए वो बलराम बोस के यहाँ पे जाके बोलते हैं कि मुझे मेरा ये खाना, ये देह के लिए जो भी खाने की जरूरत है तुम दिया करो, एंड देन सुरेश विल पे द रेंट। इस तरह से काशीपुर गार्डन्स एक छोटा सा आश्रम बन जाता है। वो आश्रम का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इट वाज ऑल द नेचुरल लीडर कॉल्ड नरेन, राइट। वो एकदम नेचुरल, ही वेंट इनटू द पोजीशन ऑफ अ लीडर ऑटोमेटिकली। शेड्यूल बना दिया था, पूजा कब होगा, जब ऐसा नाम संकीर्तन, पूजा, जपम, ध्यान, रीडिंग ऑफ बुक्स, प्रवचन कब होगा, यू नो, he ensured who will clean, so he had put up an entire schedule for everybody। The idea was कि इस तरह से जीना चाहिए कि हम हमारा ध्यान गुरु एंड स्पिरिचुअलिटी से कहीं और बटे ना। No, there should not be a single thought that comes to our mind other than Guru, his seva and progressing on the spiritual path। गुरुदेव ने नरेन को in दक्षिणेश्वर he had told कि ये जो 16 लोग है ना, मैं तुम्हें सौंपता हूँ नरेन, ध्यान रहे कभी इन लोग भटकना नहीं चाहिए। एंश्योर दैट यू होल्ड देम स्ट्रांगली, हडल देम, मटेरियल वर्ल्ड से दूर रखो। इनके लिए बहुत बड़ा काम करना है, देवी का इनका आज्ञा है इन पर, तो एंश्योर दैट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So that is why Naren naturally comes into the position of leader and ensures that all this work starts getting done। One of the days what happens is, एक ग्रुप ऐसे खड़ा है एक पेड़ के बाजू में, नरेन goes there
आजू बाजू में जो भी ट्विग्स वगैरह हैं वो कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद धुनी जलाते हैं। धुनी जलाने के बाद वो बोलते हैं टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू डेडिकेट माई लाइफ टू गुरुदेव एंड हिज टीचिंग्स, राइट। इसके बाद मेरा वापस घर जाना नहीं होने वाला है। मैं पूरा का पूरा जीवन गुरुदेव और उनके जो उन्होंने जो सिखाया है उस मार्ग पे चलना और उन्होंने जो सिखाया है उसका प्रचार करना, इसमें पूरा का पूरा दिन में मेरा लाइफ आई एम गोइंग टू स्पेंड। जो भी ये करने के लिए तैयार है वो प्रतिज्ञा करे आज, और जो नहीं करने के लिए तैयार है आज ही छोड़ के चले जाए। तो सारा का सारा 16 डिसाइपल्स वो जो थे उन्होंने उस अग्नि के सराउंडिंग में खड़े रह के दे टुक अ प्रतिज्ञा, राइट। दे सेड आज के बाद हमारा पूरा का पूरा जीवन इज फॉर गुरुदेव। इट्स एन इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस, इट्स एन इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस दे डिड एंड दे जेन्युइनली डिड दैट सैक्रिफाइस। वो इस तरह से उन्होंने अपना सारा मटेरियल डिजायर्स को अर्पण किया वो अग्नि में। एवरीबडी दे हैव एक्चुअली कम बैक सेइंग लेटर ऑन इन देयर लाइव्स कि वो प्रतिज्ञा लेने के बाद उनका जीवन में देयर वाज अ मेजर चेंज। दे लॉस्ट कनेक्ट विद द एंटायर मटेरियल वर्ल्ड। एक ऑटोमेटिक वैराग्य आ गया बिकॉज उन्होंने मन से उनका पूरा डिजायर्स अर्पण कर दिया था गुरुदेव के लिए। उम्र क्या था? सारे 18 और 22 के बीच के लड़के, राइट। It is important for us to know the age. It's not some 60-year-old man who's enjoyed everything and then saying मैं आज से वैराग्य बनूंगा। 18, 19, 20, 21, 22 साल के बच्चे, taking this प्रतिज्ञा, उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली, इसीलिए रामकृष्ण ऑर्डर बना। रामकृष्ण ऑर्डर बना तो हमें रामकृष्ण परमहंस मिले, राइट, और उनका सीख मिला। हमें मतलब पूरा दुनिया को मिला, राइट। And that is why this event was important. Whenever I hear this story, I'm reminded of what Shivaji did as a 16-year-old boy with a bunch of his Marwa friends. He ensured वो रायरेश्वर करके एक टेम्पल है, वहाँ पे जाके उन्होंने हिंदवी स्वराज के लिए जो ओथ लिया, उन्होंने वो लिया। 16-year-old boy, I mean I can't even imagine 16-year-old, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं था क्रिकेट के अलावा, right? 16-year-old boy, he took that oath and he established a Hindavi Swarajya, Hindavi Raj. अगर हिंदवी राष्ट्रराज है, it is because what Shivaji did then as a 16-year-old boy. In that manner, Naren and all his gang, they took a pratigna. Gurudev, when somebody was saying कि कैसे लोग इतने पॉवर्टी में हैं, इतने तड़प रहे हैं, there is illness, there is disease, जीव कारुण्य रहना चाहिए, ऐसे करके कोई गुरुदेव के बोलते हैं तो गुरुदेव गुस्सा कर देते हैं। गुरुदेव बोलते हैं जीव कारुण्य करना तुम्हारा बस थोड़ी है। कारुण्य मतलब कंपैशन करना। जीव कारुण्य ये भगवान का काम है, हम सिर्फ जीव सेवा कर सकते हैं। तुम्हें बुरा लगता है तो सेवा करो उनकी। कारुण्य, दे डोंट नीड कंपैशन। कंपैशन करुणा करना एक भगवान का काम है। तो इस तरह से जीव सेवा एंड त्याग, these two, ये दो आधार स्तंभ पे पूरा रामकृष्ण ऑर्डर is standing। ये उस दिन उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली। एक बार क्या होता है, there is a senior devotee, there is a senior person who comes and takes दर्शन, गुरुदेव का दर्शन लेते हैं, and he requests, बोलते हैं कि मैंने सुना है गुरुदेव एक सच्चा संत अगर सिर्फ अपना ध्यान एक और केंद्रित कर दे तो उसका उद्धार हो जाता है, उस जगह का उद्धार, उस लोक का, उस पर्सन का उद्धार हो जाता है। तो आप सिर्फ अपना ध्यान एक बार अपने देह पर केंद्रित करो, आप अपने डिसीज पे केंद्रित करो, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव सिर्फ हंस के टाल देते हैं। गुरुदेव इज डूइंग दिस एज अ पार्ट ऑफ द लीला। उन्होंने ठान लिया है जाना वापस, राइट, सो नोबडी कैन स्टॉप देम। तो ये कह के वो चले जाते हैं। ये बाजू में ना डिसाइपल्स वगैरह सुन रहे हैं, ये 16 लोग में से 5-6 लोग ना सुन रहे हैं। तो सारे लोग ना गुरुदेव वो जाने के बाद घेराव कर देते हैं गुरुदेव को और बोलते हैं गुरुदेव ये आप ये कह के गए हैं, आपसे कर पाएंगे आप। इफ यू थिंक अबाउट इट इवन फॉर अ मोमेंट, अ स्प्लिट सेकेंड, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कैसे कैसे लोग आके आपसे करुणा मांग के जाते हैं, आप अनुग्रह कर देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, आप क्यों नहीं ठीक होंगे? आपको ठीक करना ही है। You don't want to live is a different thing. आपको बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है, it's a different thing, but we want you. हमारे लिए आपको करना है। तो गुरुदेव is not able to argue back. तो इन सॉफ्ट मोमेंट गुरुदेव क्या करते हैं ना, वो ऐसे ध्यान में चले जाते हैं। सामने डिसाइपल्स खड़े हैं, गुरुदेव ध्यान में चले गए हैं। गुरुदेव बात करना चालू कर देते हैं विथ माँ, काली माँ। तो इन लोगों को सिंगल फोन पे हम कैसे बात करते हैं, सामने वाले की सुनाई नहीं देती है ना, तो हमें सिर्फ गुरुदेव जो बात कर रहे हैं वो सुनाई दे रही है। तो गुरुदेव बात कर रहे हैं, माँ ये सब बोल रहे हैं कि मैं अगर थोड़ा खाना खा लूं, थोड़ा सेहत बना लूं तो अच्छा होगा। ऐसे करके आप माँ, अगर आपने अनुमति दी तो मुझे
थोड़ा खाने के लिए अनुमति दे दो, is what he said, so that I can regain a little bit of health. थोड़ी देर के बाद साइलेंट हो जाते हैं और फिर ऐसा है ना माँ, बराबर है माँ, बराबर है, नहीं नहीं मैंने मांग के गलती कर दी, माफ कर दो माँ, ऐसे करके बोलते हैं. तो इन्होंने बोला इसीलिए मैंने मांगा माँ, ऐसे करके बोलते हैं. ध्यान से बाहर आते हैं, बाहर आके हंसते बोलते हैं, बदमाश हो तुम लोग सब लोग, मुझसे क्या मांगने में मजबूर कर दिया, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा है और आज मैंने मुझे ये मांगने में मजबूर कर दिया, शर्मिंदा मुझे कर दिया तुमने माँ के सामने. तो सामने सब पूछते माँ ने बोला क्या, व्हाट इज इट दैट शी टोल्ड. तो बोले माँ अपैरेंटली टोल्ड, तुम ये मुंह से खाने की बात कर रहे हो, वो उन्होंने तुम्हारा सब, ही शोड, माँ इट सीम्स शोड ऑल ऑफ योर, एंड शी सेड इतने मुंह से तुम खा रहे हो, क्या तुम्हारे लिए कम है. इस वर्ड माँ ने ऐसे पूछ लिया, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने माँ से ऐसा सब पूछा, तुम जाओ मैं कुछ नहीं खाने वाला हूँ, इज व्हाट ही सेज. उन्होंने बेसिकली संकेत रूप में बता दिया था कि इज नाउ गोइंग टू गो इनटू द अखंड रूप, ये देह छोड़ के ही इज गोइंग टू लिव थ्रू दिस डिसाइपल्स टू मेक करुणा ऑन द वर्ल्ड. इस दरमियान देयर इज अ डॉक्टर कॉल्ड राजेंद्र लाल who comes. Now Rajendra Lal is a fairly senior doctor, but Mahendra Lal Sarkar is already treating him. मगर वो आके पूछते हैं कि आप अगर अनुमति दे तो मैं भी ट्राई करता हूँ मेडिसिन देना. He also doesn't mind. Mahendra Lal Sarkar also doesn't mind. बोलते मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, आप कोशिश करके देखो, क्या पता आपके मेडिसिन में you might just become okay. तो कभी-कभी it seems he used to cry. माँ बहुत दर्द हो रहा है, माँ बहुत दर्द हो रहा है. लोग आते थे दर्शन लेने के लिए आते थे, तो दर्शन लेते लेते ना ही यूज्ड टू नॉट बी एबल टू स्पीक, तो माँ के अंदर चले जाते थे मंदिर के अंदर, एंड यूज्ड टू से माँ वो आया मिलने के लिए, मैं कैसे उससे बात कर सकता हूँ, ये फटा हुआ है, ये शरीर फटा हुआ है, रिपेयर हो गया है, अभी इसे और कितना ठीक करो, मुझे मुक्त करो, और तुम खुद ही अनुग्रह क्यों नहीं करते हैं, ऐसे करके रोते थे. इट सीम्स समटाइम्स वो करुणा करने का जो वो पागलपन है, मतलब भक्तों पे करुणा करके उनका उद्धार करने का सिंगल हेतु was at that level कि वो खुद का भी ख्याल नहीं रखते थे. तो ये इनका जब दवाई चालू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा he becomes a little okay, so everybody becomes happy. अच्छा ये दवाई probably it is suiting him, and he's slowly slowing a little improvement, in his थोड़ा बात करें, थोड़ा खाना थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, लिक्विड ही जा रहा है मगर थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, बैठ रहे हैं, and is able to sit at least in his room and talk a little more and stuff like that, so they're a little happy. Is that man? 1886 January 1 is the date. उस दिन छुट्टी है, न्यू ईयर है, right? Britishers are already there, so अपना कैलेंडर had changed, so the new year has become January 1st, right? तो छुट्टी है, तो काफी डिवोटीज उस दिन आए हैं. Okay, I've always told disciples and devotees are different. Disciples are who they are already staying with him. Devotees are people गृहस्थ जो आते थे, दर्शन लेके जाते थे, तो ऐसे devotees काफी उस दिन आए हैं. गुरुदेव also is feeling a little better उस दिन, and he says मुझे गार्डन में वॉक करना है, लेके चलोगे. सब बहुत खुश हो जाते हैं, कि गुरुदेव को मेडिसिन is now working and it is going to be very fine, and गुरुदेव is also going to be very fine now. तो वो उनको स्वेटर वगैरह पहनाते, जनवरी है ना, तो इट्स अ वेरी कोल्ड सीजन, तो स्वेटर वगैरह पहनाते, वो मंकी कैप होता है ना, वो सब पहनाते हैं. तो मंकी कैप वगैरह पहना के वो धीरे से हाथ पकड़ के गार्डन में घूमते घूमते जा रहे हैं. पेड़ के नीचे ही फाइंड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग. वहाँ पे गिरीश चंद्र घोष भी बैठा है और कुछ बात कर रहा है, तो धीरे से गुरुदेव वहाँ पे पीछे जाते हैं. और गिरीश चंद्र घोष was always had only one thing, गुरुदेव was अवतार, गुरुदेव is अवतार, right? That is what he used to always tell to everybody. तो गिरीश चंद्र बोस के पीछे जाके खड़े रहते हैं और बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं, गिरीश क्या बोल रहे हो तुम, ये अवतार है ऐसे बोल रहे हो, ऐसे क्या देख लिया तुमने इस देह में जो मुझे अवतार करते कहते घूमते रहते हो. गुरुदेव जैसे वो पास आते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं. तो गिरीश घूमते हैं, आंखों में आंसू है, बात नहीं कर पा रहे हैं, इट इज ऑल चोक. बाजू में पेड़ के नीचे ना वहाँ पे फूल पड़े हैं, तो ऐसे थोड़ा हाथ में ऐसे फूल समेट लेते हैं, चरणों में डाल के नमस्कार कर देते हैं और उठ के बोलते हैं, जो वाल्मीकि ने जो रामायण में व्यक्त नहीं कर पाए, जो व्यासा ने महाभारत में व्यक्त नहीं कर पाए, ऐसे राम और कृष्ण के बारे में मैं क्या बोलूं, इज व्हाट ही सेज, एंड ही डज नमस्कार टू गुरुदेव. गिरीश चंद्र घोष भी समाधि के स्थिति में चले जाते हैं.
गुरुदेव भी समाधि के स्थिति में चले जाते हैं। मृग ये जो मुद्रा है इसे पकड़ के इज इन समाधि स्टेट। एवरीबडी इज डूइंग नमस्कार, सब लोग पैर को छू के नमस्कार कर रहे हैं, इस तरह से नमस्कार कर रहे हैं। गुरुदेव इन समाधि स्टेट ही सेज आप सबको ज्ञान का प्रकाश आप सब पे जागृत हो, आध्यात्मिक बने आप सब, आप में माँ काली का दर्शन मिले, आपको अपना अपना भगवान का दर्शन मिले करके आशीर्वाद करते हैं। लोग जो भी उस दिन नमस्कार कर रहे हैं सब लोगों को समाधि का स्थिति प्राप्त हो रहा है। एवरीबडी इज गेटिंग व्हाट, अपना अपना आराध्य देव, जो गणेश जो पूछता है उसको गणेश का दर्शन मिल रहा है, जो शिवा पूछते हैं वो शिवा का, देवी को देवी का, देवी उपासक को देवी का दर्शन मिल रहा है। एवरीबडी इज हैप्पी, एक्सटैटिक, ब्लिसफुल, डांस कर रहे हैं, सब लोग बुला रहे हैं आ जाओ आ जाओ। आज गुरुदेव एक कल्पतरु के खड़े, एक कल्पतरु के जैसे खड़े हुए हैं और जो भी मांगो आज दे रहे हैं, आ जाओ नमस्कार करो। जो भी नमस्कार कर रहे हैं, जो भी नमस्कार कर रहे हैं, उसको हाथ लगा के, सिर पे हाथ लगा के सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। एवरीबडी इज गेटिंग अ डिवाइन एक्सपीरियंस, बट नन ऑफ द 16 disciples were there, all of them were busy with some work। एक तो दिन भर का सेवा, वहां पे काम, कुछ ना कुछ तो काम रहता था, राइट। विवेकानंद तो सोए थे क्योंकि उनका राइट का ड्यूटी था, तो सुबह तो सोए पड़े थे। ये सारा अनुग्रह जो मिला, वो सारा गृहस्थ डिवोटीज जो उस दिन दर्शन लेने के लिए आए, उन सबको ये they all got this blissful experience, everybody got that। इसीलिए आज भी 1st January is celebrated as a Kalpataru day। हैप्पी न्यू ईयर तो बोलते ही हैं, मगर रामकृष्ण ऑर्डर में they all celebrate it as a Kalpataru day। It is the day on which they remember, जिस तरह से भर भर के हम जैसे भक्तों पर, हम जैसे, हम तो डिसेबल्स नहीं है, हम जैसे भक्तों पर उन्होंने जो करुणा की उसको याद करके, और and the prayer that he continues to bless on us। That is why I thought I should cover this day on this story on this day। Happy Kalpataru day to all of y'all। The only prayer that Gurudev should bless us with a spiritual life and bhakti in his charan। Next, थोड़ा देर के बाद नरेन उठ के आ जाते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि ये बहुत बड़ा लीला वो कर गए हैं ये तो सोए थे वहां पे। तो आते पूछते हैं कि ये क्या कर दिया आपने, मैं तो था ही नहीं उधर, आपने मेरे को नहीं दिया और इनको सबको क्या क्या उन लोगों को अपने एक्सपीरियंस दे दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो नरेन से पूछते हैं तुमको क्या चाहिए, तो बोलते हैं मुझे भी ऐसे ही भाव समाधि में रहना है, 2-3 दिन रहना है, ऐसे मुझ पे अनुग्रह कीजिए। तो गुरुदेव हंस के बोलते हैं नरेन, अरे तुम्हें तो मैंने खास माना था, तुम तो बहुत स्वार्थी निकले, तुम सिर्फ अपने के लिए पूछ रहे हो, तुम्हें देवी का काम करना है, तुम्हें इससे बहुत बड़ा कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, मैं दूंगा, थोड़ा सब्र रखो, मैं सब दूंगा तुम्हें, और तुम्हें बहुत बड़ा काम कर जाना है, सिर्फ अपने लिए मत मांगो। ऐसे करके उसके पीठ थपथपा के अंदर चले जाते हैं। इस दरम्यान क्या होता है, गुरुदेव बोलते हैं कि ये सारे 16 के 16 इतना सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव न्यू कि आगे जाके इनको क्या क्या मुश्किल दौर आने वाला है, इनको क्या निर्माण करना है, गुरुदेव ऑलरेडी न्यू ऑल दैट। तो एक दिन सबको बुलाते हैं और बोलते हैं तुम सारे लोग सर्वसंग परित्याग किया है, सब कुछ छोड़ दिया है, तुमने वो प्रतिज्ञा ली है, मेरे लिए तुम्हारा जीवन तुमने अर्पण कर दिया है, तो आज एक काम करो, आज जाके सब लोग भिक्षा मांग के लेके आओ। कौन? एवरीबडी, आई मीन मोस्ट ऑफ देम आर ऑल रिच चिल्ड्रन, राइट। खाना बोलने के पहले खाना टेबल पे हाजिर होता था उनके लिए, राइट। ऐसे लोग थे, स्टूडेंट्स थे, उन लोग सबको बोलते हैं कि जाओ भिक्षा मांग के लेके आओ। ऑल 18, 20, 20, 21 2 पीपल हमारे घर के सामने अगर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, अरे हट्टा कट्टा हो, काम करो, भिक्षा क्यों मांग रहे हो, राइट। बोलते हैं नो, तुम जाके भिक्षा मांग के, भिक्षा क्या, आज खाना सब लोग हम खाएंगे। महापरिवार सेज भिक्षा इज भिक्षाचार्य, इट इज लाइक अ टीचर। और जो मुमुक्षु रहते हैं, मतलब जो संन्यास लेने का जो इच्छुक रहते हैं, उनको भिक्षा लेके ही खाना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दैट विल टीच यू टू कंट्रोल योर ईगो एंड एंगर। हर घर में मिलने वाला ऐसा नहीं है। भगवान रमण महर्षि शिरडी बाबा जब जाते थे, उनको भी धुप करके बेच देते थे। ऐसे एक संत को जिसको एक बार खाना भी खिला दे तो हमारे जनरेशंस इज टेकन केयर ऑफ, राइट। ऐसे भी संतों को खाना नहीं देते थे लोग, राइट। दैट इज व्हाट पीपल डू, दैट इज पीपल लाइक अस। बोलते नहीं, भिक्षा लेके आओ, इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो सारे लोग जाके भिक्षा लेके आते हैं, उस दिन खाना बनाते हैं बच्चे लोग, एंड देन गुरुदेव को पहले अर्पण करते हैं। गुरुदेव एक निवाला लेते हैं, ये बोलते हैं ये पावन भिक्षा है, आज से ऐसे भिक्षा लेके ही तुम लोगों को खाना है।
करके he takes it and he blesses. That is the formal beginning of the Ramakrishna order, right? इसके बाद जो हुआ, of course the rest is history. We all know how Ramakrishna order got created. और भिक्षा लेना is never that easy because there is a good story. You know, ज्ञानानंद स्वामी का ना जयंती is celebrated on चित्रा मासम के पौर्णिमी के दिन around April. Okay, it is celebrated. तो एक Swami is there in Tapovan in South India. Bombay में there were some devotees. They said हम लोग भिक्षा लेके जो collect होगा ना वो वहाँ पे लेके जाएंगे because ज्ञानानंद स्वामी ran a big अन्नदान this thing there. तो वहाँ पे उनको मदद होगा, तो वहाँ पे यहाँ पे बॉम्बे में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं. तो भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, group of people go stand in front of one of the house. The grahastha comes with a cup of water and he says, "You useless fellows, you all young fellows, you all don't want to work and you all are asking, you are begging." करके वो पानी लेके ना मुंह पे मार देते हैं. तो अपमान लेके चले जाते हैं. They are not supposed to react, right? अपमान लेके चले जाते हैं. दूसरे घर में वो घड़ा लेके आ जाता है. बोलते हैं ये तो एटलीस्ट कप लेके आए, ये तो घड़ा लेके आ रहे हैं, ये क्या होने वाला है इधर. That grahastha comes and does पाद पूजा और सिर्फ उनके झोली में नहीं डालते हुए घर भर के ही gave lot of grains for तपोवन. तो ये सब स्टोरी लेके इन लोग पहुंचते हैं तपोवन. तो ज्ञानानंद स्वामी उनको सामने देख के अच्छा आगे क्या हुआ, एक घर में तुमको अभिषेक और दूसरे घर में पाद पूजा मिला. is what it is. Basically क्या the teaching is that अपमान भी मिलेगा, right? When you take a भिक्षा you will always get, but अपमान से क्या होता है, हमारा ego control होता है. That is why the भिक्षाचार्य is important. He puts them through this practice because आगे जाके सबको सन्यासी बनना है. सन्यासी बनने के बाद सबको भिक्षा लेके ही खाना है. वो इतने मुश्किल दौर से गुजरने के बाद they have to establish an order. So that is why the training was. एक बार महेंद्रनाथ गुप्ता जिन्होंने गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण आई टोल्ड यू ना, उन्होंने डायरी में नोटिंग करके रखा था, विच इज व्हाट लेटर गॉट पब्लिश्ड. वो एक बार आके मिलते हैं और बोलते हैं, गुरुदेव आप इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू रिलीव योरसेल्फ ऑफ दिस. यू कैन रिलीव, आप चाहे तो कर सकते हैं, अपने आप को रिलीव कर सकते हैं, हमसे देखा नहीं जाता ये स्ट्रगल. तो गुरुदेव हंस के बोलते हैं, हाँ बराबर है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ. अगर आप सब अनुमति दे दो तो मैं अभी के अभी देह छोड़ने के लिए तैयार हूँ. मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है स्ट्रगल रखने में, मैं देह छोड़ने के लिए तैयार हूँ. आप लोग सब लोग ने प्यार से बांध के रखा है इसलिए हूँ. तो इस सुनके महेंद्रनाथ गुप्ता रो देते हैं, गुरुदेव हमें अनाथ मत करके जाओ, हमें छोड़िए मत करके नमस्कार कर देते हैं. Similar story with भगवान रमण महर्षि. when he gets cancer, a devotee comes, he says, भगवान आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, हमारा सब दर्द उठा लेते हैं, आप अपना कैंसर क्यों नहीं ठीक कर लेते. तो the answer he gives is, he says, ये शरीर जो 4 जन को उठा के लेके जाना है, मैं अकेला उठा रहा हूँ, कितने और साल उठाऊंगी. what he says. Basically he decided to let go of his deha. Gurudev had decided to leave because उनका अवतार कार्य हो गया था. इस दरमियान एक बार क्या होता है, शारदा देवी is staying in the upstairs. वो बोलते हैं कि ये he is not even getting well और ये डिसीज बढ़ते जा रहा है, सब लोग बोल रहे हैं इसके लिए इलाज नहीं है. तो तारकेश्वर मंदिर, मैंने बोला था ना, तारकेश्वर मंदिर इज अ फेमस मंदिर नियर कलकत्ता. तो वहां पे जाके हत्या व्रत मतलब क्या, पूजा करने का और अपने आप को वहां पे लिटा देने का और बोलने का, यू गिव मी एन आंसर एंड टिल द टाइम यू गिव मी एन आंसर आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ दिस प्लेस. ओके. वो बच्चे हट करते हैं ना पिताजी और माँ के पास, मुझे साइकिल चाहिए मतलब रोड में बैठ जाएगा वो, साइकिल दिलाने तक वो रोड में बैठा रहेगा. राइट. That is what हत्या व्रत is. That is what we do to God. पिता ही है ना हमारे, तो हम करना बनता है अपना. तो जाके सो जाते हैं वहां पे. शिवा, यू महादेव बताओ क्या है, what is the answer. my husband is struggling, you have to give me some answer. तो उस समय उनको एक विजन आता है, एक मटके, those pots, mud pots ऐसे हीप में रखे हैं और कोई एक अनजान व्यक्ति लाठी आके फट 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 करके सब तोड़ देता है. तो she comes out of that vision, she basically understands कि ये वाले मटका भी टूटने वाला है, it is only a matter of time. She comes back and then goes into a room. जाते जाते गुरुदेव पकड़ लेते, कहाँ तारकेश्वर गए थे, क्या बोले तारकेश्वर. तो रोते रोते माँ बोलती है कि ऐसे मिला, मुझे पता है तुम क्यों गई उधर, is what he says. मुझे पता है ये काम खत्म होने को आ गया, is what he gives an indication to शारदा माँ.
बड़ा गोपाल करके ना, गोपाल उनका नाम है, दो गोपाल थे, तो एक छोटा गोपाल और एक बड़ा गोपाल करके पुकारते थे। बड़ा गोपाल इज अ सीनियर पर्सन, अबाउट 60-65 ईयर ओल्ड पर्सन। ही कम्स एंड टेक्स दर्शन, और वो बोलते हैं कि मैं काफी ये भगवा रंग का कपड़ा लिया है और रुद्राक्ष माल सब लेके मैं काशी जा रहा हूँ, वहां पे सन्यासियों को गिफ्ट देने के लिए, दान देने के लिए जा रहा हूँ मैं, आपका अनुमति लेने के लिए आया था करके कम्स एंड मीट्स गुरुदेव। तो गुरुदेव हंसते हैं, बोलते हैं काशी जाने के लिए क्या जरूरत है। वैसा 16 बच्चों को ऐसा हाथ दिखा के बोलते हैं इनसे बड़े सन्यासी कहीं और तुमको मिलेगा गोपाल, एक काम करो। बोलते ये लोग जो हैं बाहर की दुनिया में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड उनको बुलाने, उनको अट्रैक्ट करने के लिए तैयार है, फिर भी सारा का सारा छोड़ के प्रतिज्ञा लेके ये देह का सेवा के लिए रहे हैं, धर्म की सेवा के लिए यहाँ पे बैठे हैं। इनसे बड़ा सन्यासी तुम्हें नहीं मिलेगा बड़ा गोपाल, तुम ये सारा का सारा जो भगवा है और रुद्राक्ष है इनको दे दो, इज व्हाट ही सेज। तो गोपाल को भी पसंद आ जाता है, बोलता है गुरुदेव आप ही अपने हाथों से दे दीजिए। दैट इज हाउ द इनिशिएशन ऑफ द सन्यासा ऑर्डर happens for the 16 people। गुरुदेव अपने हाथ से भगवा रंग और रुद्राक्ष माला हर एक 16 डिसाइपल्स को देते हैं। एक सेट बच जाता है, तो वो गोपाल आके पूछता है इसका क्या करूं, तो बोलते रखो, इसके लिए भी एक दिन आएगा। तो बोलते किसके लिए रखा है तो अपने गुरुदेव, बोलते गिरीश के लिए रखा है। कौन गिरीश? द अटर विमनाइजर, राइट, महापापी, ड्रंकर्ड, राइट, कैरेक्टरलेस पर्सन, उसका भी उद्धार किया गुरुदेव ने। उद्धार सिर्फ उद्धार नहीं किया, उद्धार करके उनको भी एक सन्यासी और संत का दर्जा दे दिया। ये आगे जाके ना जब गिरीश को पता चलता है कि गुरुदेव ने एक उनके लिए रिजर्व करके रखा था, रो देते हैं, बोलते ये क्या करुणा है इन्होंने मुझ पे किया है, इसका मैं कैसे, हाउ कैन आई इवन रीपे दिस, मैं इसका पात्र हूं ही नहीं, इतना बड़ा पापी हूं, मुझे भी आप जैसे सन्यासियों के साथ बिठा के मुझे भी सन्यासी बना दिया गुरुदेव ने। ये करुणा किस लेवल का करुणा है, जो कहते रो देते हैं गिरीश लेटर ऑन इयर्स में। एक बार दुर्गाचरण नागर, मैंने बोला था ना एक डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, जिनको बोला था डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट को भक्ति नहीं आती है, तो वो डॉक्टर ही वेंट एंड थ्रू ऑल हिज मेडिसिन्स इनटू गंगा एंड ही स्टार्ट्स लिविंग लाइक अ मॉन्क। गृहस्थ आश्रम में ही थे, मगर गुरुदेव ने जैसा बोला वैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो मिलने आते हैं, वो इस तरह से प्रोग्रेस हो जाते हैं फिलोसॉफिकली कि वो ध्यान इस तरह से करते थे, जप इस तरह से करते थे, बहुत पावर आ जाता है। ही ऑल्सो बिकम्स अ पर्सन, उनके बारे में पुस्तक लिखा गया है, ओके, महान नागर जी करके उनके बारे में पुस्तक लिखा गया है। खुद संत बन जाते हैं, दूसरों को अनुग्रह करने का भी कैपेबिलिटी आ जाता है उनमें। तो वो मिलने आते हैं, तो मिलने आने के बाद गुरुदेव इज इन मिस्टीरियस मूड, वो बोलते हैं नागर तुम डॉक्टर हो ना, तुम तो इलाज कर ही नहीं रहे हो मेरी, यू शुड ट्रीट मी, यहाँ पे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इलाज कर पाओगे? दुर्गाचरण नागर ना बैठे हैं सामने, चुपचाप बैठे हैं, गौर से देख रहे हैं गुरुदेव को। उनको पता चल जाता है कि दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन, ये कोई डॉक्टरी सवाल है नहीं। वो मन में ठान लेते हैं, तो पूछते हैं कि मैं ये ठीक कर सकता हूं, अगर ये वाला रोग मैं अपने आप पे ले लूं तो गुरुदेव मुक्त हो जाएंगे, गुरुदेव ठीक हो जाएंगे। इस हेतु वो उठते हैं और बोलते हैं गुरुदेव मैं ठीक कर सकता हूं। ऐसे करके ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स गुरुदेव। गुरुदेव देखते हैं बाजू में एक लाठी रहती है, लाठी लेके बोलते हैं दूर जाओ, मुझे पता है तुम कर सकते हो, तुम मुझे हाथ भी मत लगाओ, नमस्कार करने आते हो बोलते हैं हाथ मत लगाओ मुझे पता है तुम मेरी बीमारी ले सकते हो, बट दैट इज नॉट फॉर यू, ये मेरे लिए है, ये मेरा ही है। ऐसे करके उसको भी आशीर्वाद देते हैं। एक दिन योगी जो आगे जाके योगानंदा बने, उनको पंचांग पढ़ने बोलते हैं। He says every day go on reading one day after the other। पंचांग एक दिन एक डे हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे एक के बाद एक पंचांग पढ़ रहे हैं, तिथि, नक्षत्र, योग, ऑल दैट ही कीप्स ऑन रीडिंग। अगस्त मिड क्रॉस करके अगस्त एंड तक आ जाते हैं, बोलते योगी बस, बेसिकली he had decided one day on which he has to देह त्याग करने का एक दिन वो तय कर लेते हैं अपने मन में। सिमिलरली बाबा का स्टोरी में भी ऐसे ही है, 4 महीने पहले ही वो तय कर लेते हैं कि वो देह त्याग करने वाले हैं। Some other time I'll cover that story. But there is still special blessings to happen on नरेन। नरेन को स्वामी विवेकानंद बन के
जग दुनिया का सेवा करने के लिए खड़ा करना है, अभी भी बाकी है, एंड ही ऑलरेडी डिसाइडेड हिज एंड डेट। नरेन के मन में ना बहुत बड़े भक्त थे, गुरु सेवा उनसे बढ़कर कोई कर नहीं पाए इस युग में, हमने भी देखा है, राइट, वी हैव सीन दैट। बट हमेशा ही ऑलवेज हैड दिस डाउट। गिरीश बोलता है अवतार है, राम बोलते हैं अवतार है, अवतार नहीं है। भगवान बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत ज्ञानी हैं, प्योर सोल है, बट ह्यूमन है। ऐसे उनके मन में ना अभी भी एक डाउट है, एक शंका है। पर मन ही मन वो सोचते हैं, वो उस दिन रूम में आते हैं, गुरुदेव बहुत बीमार है, इज नॉट इवन गेटिंग अप। मन ही मन सोचते हैं, आज अगर ये मुझे बता दे, इस हाल में उठ के मुझे अगर बता दे कि मैं ही अवतार हूं, तो मैं मान जाऊंगा। ऐसे करके मन में सोच रहे हैं नरेन, एंड ही इज क्लीनिंग अप द रूम। गुरुदेव इज नॉट एबल टू इवन गेट अप दैट डे। सडनली गुरुदेव उठ जाते हैं, बोलते हैं नरेन, फुल वॉइस में ही कॉल्स इन नरेन। नरेंद्र ऐसे घूमते हैं, बोलते जो राम बन के आए, जो कृष्ण बन के आए, वही राम कृष्ण इस देह में है। क्या तुम्हें अभी संदेह है नरेन? तुम अपने भक्ति के आंखों से देखो। ऐसे करके उसको आशीर्वाद करके सो जाते हैं। दैट इज द टाइम नरेंद्र अंडरस्टैंड्स कि ये अवतार है, नमस्कार करते हैं। दैट डे ही गोज आउट एंड सिट्स इन द गार्डन। गार्डन में बैठे हैं, मेडिटेशन करते करते उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पीछे से देयर इज अ ह्यूज लाइट दैट इज कमिंग। पीछे मुड़ के देखते हैं, भंग हो जाता है मेडिटेशन, पीछे मुड़ के देखते हैं कुछ नहीं है, वापस मेडिटेशन में बैठते हैं, अगेन देयर इज अ लाइट दैट कम्स एंड दैट लाइट स्टार्ट्स एंगल्फिंग हिम। धीरे 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 ही स्टार्ट्स लूजिंग द सेंसेशन ऑफ हिज बॉडी, कंप्लीटली बॉडी का सेंसेशन छूट जाता है। थोड़ा देर के बाद ही कम्स आउट ऑफ द मेडिटेशन, बट गले से ऊपर का भाग का सेंसेशन है, गले से नीचे का भाग का सेंसेशन ही नहीं है, लाइक अ पैरालिटिक स्ट्रोक। वो बोल रहा है कि स्टार्ट्स शाउटिंग, मैं अपने हाथ महसूस नहीं कर सकता हूं, मेरा बदन, मुझे कुछ हो गया है, आई कैंट फील माय लेग, ही स्टार्ट शाउटिंग। तो वहां पे सब डिवोटीज, डिसाइपल्स वगैरह आते हैं, बोलते हैं नरेंद्र ये देखो तुम्हारा हाथ यहीं पे, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सम ऑफ देम गो टू गुरुदेव, गुरुदेव के पास जाके बोलते हैं नरेंद्र को कुछ हो गया है, वो चिल्ला रहा है, वो हाथ महसूस नहीं कर पा रहा है। गुरुदेव बोल रहे हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, उसको वो एक्सपीरियंस चाहिए था, रहने दो ऐसे ही थोड़ा देर, लेट हिम एक्सपीरियंस दैट। So this is the first experience that Gurudev gives Naren, a special experience that he gives. वो भगवान, वो सब ये एक्सपीरियंस होने के बाद when he gets full sensation, ही आके नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के बाद गुरुदेव बोलते हैं तुमको एक्सपीरियंस चाहिए था, उस दिन मांग रहे थे, इसीलिए मैंने दिया। अभी ये एक्सपीरियंसेस काली माँ ने बोला है कि मेरे पास सेफ कीपिंग के लिए देके गई है, आई एम गोइंग टू कीप इट इन अ सेफ, और वो उसका सेफ का चाबी मेरे पास देके गई है। तुम्हें काली माँ का बहुत सारा काम करना है, धर्म का प्रचार इस तरह से करना है कि पूरे दुनिया में फैल जाए सनातन धर्म। तुम्हारा कार्य होने के बाद ये चाबी मैं खोल के दे दूंगा और मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। दैट इज व्हाट ही सेज, एंड वी नो राइट व्हाट नरेंद्र डिड आफ्टर दैट। उसी तरह से आफ्टर 39th ईयर ऑन वन सिंगल डे इन बेलूर मठ, पूरा कार्य विवेकानंद का सब होने के बाद व्हेन ही इज लाइंग डाउन इन अ मेडिटेशन मोड, उनका वो प्राण त्यागते हैं। द सेकेंड ब्लेसिंग, थोड़े दिन के बाद गुरुदेव बोलते हैं इनको एक अनुग्रह करना चाहिए, नाम स्मरण का, इनको नाम मंत्र का जब उनको उपदेश देना चाहिए। तो नरेन को बुलाते हैं, बोलते हैं स्नान करके आओ, मैं तुम्हें राम नाम का मंत्र देने वाला हूँ। तो राम नाम का मंत्र देते हैं। राम नाम का मंत्र देने के बाद उनमें ना हनुमान का भाव जागृत हो जाता है। विवेकानंद इज स्ट्रॉन्ग बॉडीड पर्सन, वो हनुमान का भाव आते ही ना वो स्टार्ट्स, वो बिल्डिंग, इट्स यूट्यूब में आप देख सकते हैं, दिस थिंग यू कैन सी दी काशीपुर गार्डन का बंगलो एंड द गार्डन। ही स्टार्ट्स डूइंग प्रदक्षिणा टू द बिल्डिंग, घूम रहे हैं, कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, जय श्री राम गर्जना करके घूम रहे हैं। कोई पास भी जाने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग कि कुछ तो इनमें हनुमान के जैसे आवेश में आके कर रहे हैं। तो गुरुदेव के पास जाके बोलते हैं कि क्या हो गया नरेन को, इसे गर्जना कर रहे हैं, हम तो पास जाने से भी डर रहे हैं। तो कुछ नहीं है, हनुमान का आवेश आ गया है, वो थोड़ा देर के बाद शांत हो जाएगा। राम नाम का वो प्रभाव है, राइट, नाम का प्रभाव उनमें आते ही वो ही बिकम्स एन हनुमान, उस भाव में चले जाते हैं। नाउ ही सेज दिस इज आल्सो नॉट एनफ, देयर इज अ फाइनल अनुग्रह दैट ही वांट्स टू डू ऑन नरेन। एक दिन सुबह काफी डिवोटीज रहते हैं, गुरुदेव सेज तुम लोग सब लोग जाओ। नरेन को रोक लेते हैं। नरेन को रोकने के बाद नरेन को सामने बिठाते हैं एंड ही स्टार्ट्स वाचिंग नरेन वेरी कीनली। नरेन भी गुरुदेव को देख रहे हैं
Naren automatically goes into a samadhi mode. धीरे धीरे गुरुदेव also gets into a samadhi mode. नरेन को ना देखते ही गुरुदेव ना नरेन को देखते ही पहले तो सहलाएंगे, गाल ऐसे करेंगे, नरेन आ गए, इस तरह से ही करते थे वो इट सीम्स में दक्षिणापुर में दक्षिणेश्वर में ना आई फॉरगॉट द स्टोरी. वो नरेन अगर दूर से आते थे ना, बहुत दिनों के बाद आते थे ना पहले, तो वो आ गया ना ना ना, नरेन भी पूरा बोल नहीं पाते थे ना बोलते भाव समाधि में चले जाते थे. मतलब भगवान के लिए भाव समाधि ठीक है, तो अपने भक्त के लिए भी भाव समाधि में चले जाते थे. तो इस तरह से प्यार से देखते देखते दोनों समाधि स्थिति में चले जाते हैं. एक थोड़ा देर के बाद, this is something Vivekananda has told later on, he started feeling a certain current going into him. They started feeling some power going into him. बहुत देर के बाद उठते हैं, नरेन wakes up and he finds Gurudev is already woken up and is smiling. एंड आंखों में आंसू है और देख रहे नरेन के पास. नरेन बोलते हैं क्या हुआ, ये क्या एक्सपीरियंस था गुरुदेव अपने, व्हाट इज इट दैट यू डिड नाउ. तो गुरुदेव बोलते हैं नरेन तुम ना एक करोड़पति हो गए हो और मैं हो गया हूँ एक भिखारी. माँ ने मुझे बोला मेरा सारा का सारा साधना का जो धन है तुम्हें देना चाहिए, दैट वाज माँ का आज्ञा. आई हैव गिवन अवे माई सेल्फ टू यू. मुझे आई हैव गिवन अवे द एंटायर पावर दैट आई हैव टू यू. इस पावर को रख के तुम्हें धर्म का प्रचार करना है. यूज इट प्रॉपरली नरेन. तुम करोड़पति हो गए, मैं भिखारी हो गया हूँ. दैट इज व्हाट ही सेज. दैट इज हाउ एंश्योर्स दैट रामकृष्ण परमहंसा नाउ स्टार्ट्स लिविंग थ्रू विवेकानंदा. This is something that Naren himself, Vivekananda himself has told. He didn't believe first कि ये क्या power हो सकता है. जब in one of his last days he spoken to one of the disciples, he said कि मैं ये I couldn't have thought of what all things that I have done. It is because it is basically Gurudev himself did it. And we all know, right? Chicago में, this is what I have told. वो the religion conference of religion में जहाँ पे बैठे थे, वहाँ पे every time they used to invite कि आप आके you can talk. Every time they used to go to Naren, Naren used to say नहीं उनको बात करने दो, उनको बात करने दो. 29-year-old young boy, right, who had gone there. इनको बात करने दो, उनको बात करने दो, is what they keep saying. Finally और कोई नहीं है, इनको ही बात करना है. And goes and stands there and so गुरुदेव का स्मरण करके he says, sisters and brothers of America, 5 मिनट का allotted time, 3 minutes तो सिर्फ applause हुआ. He had to extend the time. The organizers had to extend the time. वो उनका जो introduction पत्र था, he was to go and meet somebody and they were to take care of his stay and then and going to Chicago and all. वो पत्र खो जाता है. दर दर शिकागो में भटक रहे हैं, कहाँ जाना पता नहीं है. गुरुदेव को याद रख करते हैं, भूख लगा है, प्यास लगा है, ठंडी है, he doesn't know what is to be done. और जिस घर में जाके जिस घर के पायदा में जाके बैठते हैं, थक के बैठ जाते हैं, बोलते हैं मैं इससे आगे कहीं नहीं जा पाऊंगा, गुरुदेव मदद करो. दैट हैपेंस टू द हाउस जिसका रेफरेंस लेटर उनके हाथ से खो गया था. वो बाहर दरवाजा खोल के बोलते हैं आलू स्वामी विवेकानंदा, राइट. एक बार उनको ना when in Chicago the way he used to give speeches, people were attracted like in hundreds. तो बोलते हैं कि ये सब इतना आपने बात करना सीखा कहाँ से, कौन है आपके गुरु जो इतना कुछ आपको बात करना सिखा दिया. तो उन्होंने बोला कि I have learned everything from an unlettered guru. बोलते मेरे गुरु टोटल अनपढ़ थे, मगर एक ग्लांस he can create hundreds of Vivekananda, he said. एक ग्लांस से, सिर्फ एक नयन अपना नजर से ऐसे सैकड़ों विवेकानंद क्रिएट कर सकते हैं. ऐसे महान है मेरे गुरु. एक गुरु का भक्ति, गुरु का स्ट्रेंथ से उन्होंने वो किया. एक बार गुरुजी स्वामी जी was in India somewhere. एक दूसरा धर्म के लोग उन पे they become jealous, तो उनको वहां पे बुलाते हैं उनके देवालय में and they want to kill him with poison. तो एक जूस देते हैं, जूस में पॉइजन देते हैं. तो गुरुदेव स्वामी जी से उठाते हैं. Even as he is about to drink, उनको ना गुरुदेव का छवि दिखता है उसमें and he says, नरेन पीना मत, इसमें पॉइजन है. तो नीचे रख देते हैं कि यार इसमें पॉइजन है क्या. Those guys are astonished. अरे आप तो अभी पीने वाले थे, how come you know this? बोलते मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया. जैसे गुरुदेव has helped him टप्पे पे at every step. Gurudev has been with Naren and Swami Vivekananda is Swami Vivekananda because what Ramakrishna Paramahamsa did to him. स्वामी जी के बारे में बात करना ये एक अलग 4-5-6 सेशन का स्टोरी है, right? We cannot cover in few minutes, right? We are talking of Gurudev and I think we should make justice to that.
शारदा माँ के बारे में बात करना इज एन एंटायर स्टोरी. उनके डिसेबल्स के बारे में बात करें एंटायर स्टोरी. आई हैव डन नो जस्टिस इवन टू रामकृष्ण स्टोरी, so forget about those stories. It is finally August 15th. August 15th is Independence Day today. 1886 में it was not an Independence Day. Britishers were there. August 15th को गुरुदेव माँ काली बोलते थकते नहीं थे, राइट? माँ काली हमेशा उनके मुंह पे था, मगर लास्ट फ्यू मंथ्स बात भी नहीं कर पा रहे थे. He was not even able to utter, not able to even drink, even liquids. इस तरह से his health had become. He was not able to even utter a single word. उस दिन बहुत वीक है. He is not even able to have any liquid. Few of the devotees come take darshan. वो पल्स देख के जाते हैं. वो बोलते हैं बहुत वीक है पल्स, पता नहीं आज के दिन भी गुजर जाए तो भी ज्यादा है. It seems like he is leaving. उस दिन गुरुदेव पूरा का पूरा ध्यान में ही है, बात ही नहीं कर पा रहे हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं. एंड इज ऑलवेज इन अ ध्यान मोड. इवनिंग में थोड़ा जल्दी सो जाते हैं उस दिन. अराउंड मिडनाइट ही गेट्स अप. 24/7 उनका ड्यूटी था ना, तो उस दिन शशि वॉज ऑन द ड्यूटी. तो उठते ही वो पहुंच जाते हैं. गुरुदेव क्या चाहिए आपको? तो बोलते हैं मेरे को ना भूख लगा है. तो ही बिकम्स वेरी हैप्पी. सुबह जब नाड़ी देखा था, जब पल्स देखा था, पीपल सेड प्रोबेबली माइट नॉट सर्वाइव द डे. अभी उठ के बात भी कर रहे हैं, भूख लगा है बोल रहे हैं, शायद ही इज डिसाइडेड टू लिव. तो दे उन लोग रवा का खीर बनाते हैं, बाउल भर के बना के आके देते हैं. गुरुदेव टेक्स द एंटायर बाउल विदाउट एनी डिफिकल्टी, स्वैलोज द एंटायर थिंग. पूरा पी जाते हैं, थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, स्ट्रेट बैठते हैं, फुल थ्रोट वॉइस में he shouts माँ काली, काली माँ, माँ चिल्लाते हैं. धीरे से अपना आंख ऊपर चला जाता है, समाधि स्थिति में चला जाते हैं. बाकी सब खुश हो जाते हैं कि इनका वॉइस सुन के इतना महीना हो गया, इतने ओपन थ्रोटेड वॉइस में आज ही क्राइड फॉर हिज माँ, ठीक हो जाएंगे. धीरे से ही रिक्लाइंस ऑन दी बेड. इनको लग रहा है कि ये शायद समाधि स्थिति में जा रहे हैं. धीरे 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 ब्रेथ हैज गॉट कंट्रोल. वो देह छोड़ देते हैं. ये समाधि नहीं था, ये महासमाधि था. भाव समाधि में तो गुरुदेव यूज्ड टू ऑलवेज गो. महासमाधि में तो हमने देखा है 7 साल की उम्र से उनको तो आदत था ऑफ गोइंग इनटू महासमाधि ऑन एंड ऑफ. और महासमाधि भी इस तरह से करते थे. डॉक्टर्स यूज्ड टू चेक नाड़ी में, देयर यूज्ड टू नॉट बी पल्स, देयर यूज्ड टू बी नॉट हार्ट बीट. आंखों को अगर प्यूपिल को हाथ लगाते तो भी देयर यूज्ड टू नॉट बी अ ट्विच. इस तरह से समाधि में चले जाते थे. सो उनको पता नहीं चल रहा है कि ये समाधि हुआ है, माँ की समाधि हुआ है कि भाव समाधि में है. थोड़ा देर उन लोग देखते हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुरुदेव इज नॉट रेस्पॉन्डिंग. उन्होंने देह छोड़ दिया है, सबको अनाथ करके इज लेफ्ट. शारदा माँ को पता चल जाता है. शी कम्स डाउन, शी कम्स रनिंग एंड शी सेज हे काली, तुम मुझे छोड़ के चली गई अकेले. ये उनका रिलेशनशिप ना वेरी यूनिक. गुरुदेव saw काली इन शारदा माँ एंड शारदा माँ saw काली इन गुरुदेव, राइट? इन लोगों का रिलेशन एक्सप्रेस करना वर्ड्स में इज बियॉन्ड. दीज आर ऑल बियॉन्ड वर्ड्स, राइट? ये सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट? दीज रिलेशंस. बोलते माँ काली मुझे अकेला छोड़ के चले गए, ऐसे करके शी फॉल्स एट द फीट. उस दिन बाय द टाइम इट इज मॉर्निंग, लॉट ऑफ डिवोटीज स्टार्ट कमिंग, द इंपॉर्टेंट वंस, यू नो, महेंद्र लाल सरकार, डॉक्टर राम, गिरीश, सब आ जाते हैं. मनमोहन मित्रा, एवरीबडी कम. डॉक्टर पल्स चेक करते हैं एंड देन ही सेज, ये दोपहर के वक्त अराउंड 12 o'clock, पल्स देख के बोलते हैं नहीं, ये शायद महासमाधि है. बस आधे घंटे पहले ही उनका he's left the body. He had left the body in the morning itself, but he could feel that it's only, वो इतना fresh था, there was no decay at all in the body. And then they declare that he is no more. सब disciples रो देते हैं. See, we all know, right? He has always told कि देह छोड़ना मतलब क्या, एक कपड़ा उतारना दूसरे कपड़े में जाना. देवी के चरण में गए हैं, ये सब थियरी हमारे लिए ठीक है, मगर वो प्यार से बुलाएंगे कौन? यू नो, लाटू वो नरेन करके प्यार से बुलाएगा कौन? वो खाना कौन खिलाएगा? We all need that physical presence, you know, we all need that physical presence. तो they all cry. सब भजन गाना चालू करते हैं, बट सब रोते हुए भजन गा रहे हैं. It seems त्रिलोक सन्याल करके एक डिवोटी है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग ही sang.
I don't know what it's there in the Charitra that he sang a very soulful song, but I don't know what song he sang. When I think of this, मेरे लिए probably the only thing that I can think of in terms which is very close is there was a picture where M.S. Subbulakshmi played a role of Meera, right? I think it is 1940 or 45 का movie है. उसमें Meera sings for Krishna, okay? Yengu mirandaye, Indri yenge marandayo, Yengu munaina tedi arende ne dayalo unaye, which means तुम हर जगह पे थे कृष्णा, अब सडनली कहाँ गायब हो गए हो, मैं तुम्हें पागल की तरह ढूंढ रही हूँ, कहाँ गए हो दयालु, ऐसे करके गाती है. आई एम श्योर दे मस्ट हैव सung वेरी सिमिलर. गुरुदेव उनके लिए चारों दिशा में उनके लिए गुरुदेव 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 करके लास्ट 1.5 years द एंटायर वर्ल्ड फॉर देम रिवॉल्व्ड अराउंड गुरुदेव. एंड देन सडनली इज लेफ्ट एंड गॉन. आई एम श्योर दे मस्ट हैव सर्च्ड फॉर गुरुदेव इन द सेम स्पिरिट. तो दे आर नाउ स्टार्टेड टू डिस्कस कि गुरुदेव का क्या है ना, इज दैट वो थे गृहस्थ, राइट? ही लिव्ड लाइफ लाइक अ गृहस्थ, मगर सन्यासी थे. उन्होंने सन्यास आश्रम ग्रहण भी किया था, बट ही लिव्ड विद हिज वाइफ, ही लिव्ड विद हिज मदर, यू नो. सो इट इज ही वाज अ वेरी यूनिक सेंट इन दैट सेंस. तो दे वर नॉट वेरी क्लियर कि इनका दहन संस्कार होना चाहिए या इनका समाधि होना चाहिए. दे वर नॉट क्लियर अबाउट दैट. People like Naren and the disciples, the youngsters, they all felt कि हमारा गुरु एक बहुत श्रेष्ठ गुरु है, इनका समाधि ही होना चाहिए. बिकॉज समाधि में होता क्या है, the body is preserved, even the bones will speak for ages to come. The bones will speak. You know, that is why संतों को क्यों समाधि किया जाता है, क्यों उनको दफनाया जाता है, is because even their bones will do anugraha. But the seniors, you know, the seniors over there who had the money power, who had the say, they वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये दहन संस्कारी होना चाहिए, एक गृहस्थ के तरह रहे, इनका दहन संस्कारी होना चाहिए. इन लोग बच्चों का कौन सुनेगा, 20-22 साल के बच्चे हैं, पैसा भी नहीं हाथ में, बच्चों का कौन सुनेगा, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली दे एंड अप डूइंग अ दहन संस्कार. काशीपुर क्रेमेटोरियम में उनका गुरुदेव का दहन हो जाता है. विवेकानंदा लेटर ऑन ही सेज, मेरे गुरुदेव को जो मान मर्यादा समाधि का नहीं मिला, वो इस रामकृष्ण ऑर्डर में किसी को नहीं मिलेगा. जो मेरे गुरुदेव को नहीं मिला भाग्य समाधि का, nobody will get that भाग्य. So today, even today, all रामकृष्ण ऑर्डर सन्यासीज, उनका दहन संस्कार ही होता है, समाधि नहीं होता है. वो समाधि जो गुरुदेव को नहीं मिला, none of us will get. That is a प्रतिज्ञा that विवेकानंद does. ये अस्थि क्या करते हैं, अभी थोड़ा गंगा में बहा देते हैं, and then they say, एक महान है, राइट? You can't give away all the asthis to गंगा. अस्थि का प्रिजर्विंग होना चाहिए, एक मठ या एक आश्रम जैसा बनना चाहिए. बहुत बड़े संत हमारे लिए होके गए हैं. We cannot remove all the mortal remains. अस्थि का मतलब क्या है? अस्थि का मतलब, there are two meanings in अस्थि. अस्थि means bones, okay, and अस्थि means that which exists. Because bones also exist for a very long time, the names are common, right? और जो हम अस्थि बहाते हैं ना, इट इज नॉट टेक्निकली द एशेस, इट इज द बोन्स दैट आर गेटिंग पिक्ड अप एंड जो बहाया जाता है. तो इसलिए अस्थि को एक कलश में रखते हैं. वो अस्थि को कलश में रख के दे ऑल डिसाइड. कांगुरगाची करके एक योगा सेंटर वन ऑफ द डिवोटीज है, वो बोलते हैं वो योगा सेंटर को हम एक आश्रम की तरह बना देंगे और ये वहां पे स्थापन करके एक समाधि के जैसे बना के हम वहां पे उनको प्रतिष्ठान करेंगे. दैट इज वेयर वी विल इंस्टॉल गुरुदेव. दैट इज व्हाट दे ऑल डिसाइड. स्वामी जी, नरेंद्र के मन में बहुत ताप है. दिस इज नॉट द वे इट हैज टू हैपन. एक तो दे शुड हैव डन अ प्रॉपर समाधि करना था, इन्होंने दहन कर दिया. हमारा ही कैचेस होल्ड ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ग्रुप. स्वामी जी सेज, हमारे आज कोई बात सुन नहीं रहा है, हमारे पास आज पैसा नहीं है, मगर एक समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब हमारी बात सुनेंगे और हमारे पास पैसा भी रहेगा. मैं मेरे गुरुदेव के लिए एक गंगा घाट में एक आश्रम बनाऊंगा जहां पे उनका समाधि रखूंगा. बेलूर मठ देखेंगे तो पता चलेगा what विवेकानंद told that day, right? Belur Math is a testimony. Belur Math stands as a testimony to what Swami Vivekananda said that day. He ensured that the entire world listens to him. Swami Vivekananda बोलेंगे तो कौन नहीं सुनेगा आज. He ensured that Swami Vivekananda has listened. He ensured that there was enough money, and then Belur Math का स्थापना हुआ.
तो उन लोग क्या करते हैं, ये अस्थि जो लेके जा रहे हैं ना, तो बोलते हैं कि इसमें का आधा हम छुपा के किसी के घर पे रख देते हैं, आधा अस्थि उनको जाके वहां कंबुरगच्चे में करने दो, आधा अस्थि हम रखेंगे, हमारे हाथ में जब हम सक्षम रहेंगे तभी हम हमारे गुरुदेव के लिए एक आश्रम बनाएंगे, एक मठ बनाएंगे। दैट इज हाउ वो आधा अस्थि को लेके क्लैंडस्टाइनली दे टेक एंड कीप इट एट बलराम बोसेस हाउस। जब वक्त आता है, गुरुदेव स्वामी जी कम्स एंड ही टेक्स दैट अस्थि एंड कंधे पे लेके जा रहे हैं वो अस्थि को, स्वामी जी रो देते हैं। क्यों? क्योंकि इट सीम्स दक्षिणेश्वर, वन ऑफ द डेज व्हेन स्वामी जी कम्स, नरेन कम्स एंड मीट्स गुरुदेव, गुरुदेव ऐसा सहलाते सहलाते बोलते हैं, नरेन तुम अपने कंधे पे मुझे जाके कहाँ भी बिठाओगे ना, मैं वहां बैठ जाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम जहां भी मुझे प्यार से रखोगे मैं वहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, इज व्हाट ही प्रॉमिसेस। दैट इज व्हाई टेक्निकली ही इज नॉट इन कांगुरगाची, गुरुदेव इज इन बेलूर मठ, बिकॉज उनका अस्थि स्वामी विवेकानंद ने वहां पे इंस्टॉल्ड इट। These 16 disciples, they go through a huge amount of problem. पैसा नहीं है, संन्यास ऑर्डर ले लिया है, फिर भी they spread the entire gospel, the entire message of Ramakrishna मठ, रामकृष्ण परमहंस का जो भी मैसेज है वो पूरा दुनिया में they have spread it to a level that today Ramakrishna order, Ramakrishna mission has a whopping 221 centers across the world, out of which almost 54 to 55 centers are in different parts of the country. It is not even in this country, it is in different parts of the world. International centers, 221 centers, इतना strong monastic order बना तो गुरुदेव के अनुग्रह से बना और स्वामी विवेकानंद और शारदा माँ के एफर्ट से बना है। गुरुदेव apparently has told jokingly, he said, इस देह का पूजा दुनिया में बहुत जगह पे किया जाएगा, उन लोग प्रार्थना करेंगे ऐसे ऐसे भाषा में करेंगे कि ये देह जानता भी नहीं है, ऐसे ही himself has told when he was alive, right? Today there is there in not only in Bangladesh, of course बांग्लादेश में तो रहना ही था, but even in Western worlds it is there, पेरिस में है, लंदन में है, यूएस में है, and they all speak in languages that Gurudev probably doesn't understand, but I'm surely he blesses them all. शारदा देवी used to also bless, हमेशा गुरुदेव के पास प्रार्थना करती थी, ये 16 बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, ensure that they are never hungry, ensure that you always bless them. इस तरह से गुरुदेव का अनुग्रह उन पे बना रहा। गुरुदेव कहीं नहीं गए हैं, there is actually a good story. there is a person who comes from north and उनको पता चलता है कि गुरुदेव को ना खीर बहुत पसंद है रवा का, तो रवा और शक्कर वगैरह लेके आते हैं and then he comes and finds out कि इनका तो समाधि हो चुका है। बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी होके वो बोलते हैं अभी मैं क्या करूं, ठीक है आया हूं तो एटलीस्ट मैं बना तो लेता हूं और इनको नैवेद्य चढ़ा दूंगा। तो गंगा घाट में बैठ के वो बना रहे हैं, बना के तैयार करते ही खुद रामकृष्ण परमहंस आ जाते हैं, गुरुदेव आ जाते हैं, दे दो मुझे ऐसे करके। तो उनका समाधि होने के बाद भी बहुत लोगों को उन्होंने अनुग्रह किया, आज भी लोगों को अनुग्रह करते हैं। जब मैंने बोला था कभी इन दिस स्टोरी, शारदा मणि देवी का जब चूड़ियां उतारने के लिए जाते हैं, बिकॉज विधवा हो जाती है, तो रोक देते हैं, तुम नित्य सुमंगली हो, तुम चूड़ियां उतारो मत। तो आज भी अगर हम देखते हैं फोटो, उनका जो वेशभूषा है वो विधवा का है, लेकिन हाथ में कंगन है उनके अभी भी, राइट, द कंगन दैट गुरुदेव हैड डन फॉर हिम। और मांग में थोड़ा सा सिंदूर भी रहता है, बिकॉज शी वाज ऑलवेज ए नित्य सुमंगली। तो इस तरह से हमने 7 हफ्तों में गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस का कथा का अनुभव लिया। बहुत विस्तार में लोगों ने लिखा है, बहुत विस्तार में लोगों ने अनुभव किया है। What I have covered is just a glimpse, and that is all I can do, right? Because beyond the level, it is very difficult to narrate a story which is so big and so huge in terms of content and in terms of anugraha. It's very personal. मैं हमेशा कहता हूँ गुरु संतों का स्टोरीज में करता हूँ, ये एक
ये दुस्साहस कर रहा हूं, ये जुर्रत कर रहा हूं मैं कि एक अखंड स्वरूपी गुरु को एक शब्दों के रूप में मैं आई एम ट्राइंग टू पुट देम अक्रॉस. इट इज अ मिस एडवेंचर दैट आई डू. ओके, कहीं कोई गलती हो गई तो गुरुदेव ही माफ करना चाहिए. यथाशक्ति जितना मुझे जमता है, जितना मुझे पता है, is the effort that I really put in, and all my effort I hope Gurudev accepts in his lotus feet. ऐसे संतों के बारे में जानना, सुनना, बताना भाग्य की बात है. And all of us have been involved in this for the last 1.5 months. We all have been able to get Gurudev का सहवास मिला है हमको. So I'm surely it is something that is very very good. And न्यू ईयर चालू हो रहा है, भले हमारा ईयर नहीं है, बट न्यू ईयर चालू है, एक नया पर्व चालू हो रहा है, और उस दिन हमें ये करने का मौका मिला है, विच इज ऑल्सो इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस फॉर अस. गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस की दया से हमें सतमार्ग मिले, वही हमें सतमार्ग दिखाए, भक्ति दे, भगवान के चरण, भगवान के प्रति भक्ति दे, हमें भगवान का दर्शन दिलाए. इतने लोगों को उन्होंने दर्शन दिलाया है, राइट. उनका अनुग्रह हम पर बना रहे, उनका और काली माँ का हमेशा हम पर आशीर्वाद रहे, यही उनके चरणों में प्रार्थना. इस प्रार्थना के साथ मैं इनका एक कथा पूर्ति करता हूँ. धन्यवाद. गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस महाराज की जय. थैंक्स. होप आई वाज ऑडिबल राइट थ्रू. या ठीक है, ग्रेट. विल नाउ डू द हनुमान चालीसा and end the day. Yeah. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन वरण विराज सुबेसा कुंचित केसा. और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजय. शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन. व्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को वातुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे. सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए. रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई. सहस बदन तुमरो यश गावे अश कहि श्रीपति कंठ लगावे. सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा यद सारद सहित अहिसा. जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते. उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना. तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना. लील्यो ताहि मधुर फल जानो. प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि. दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते. राम दुबारे तुम रखवारे बिनु पैसारे. सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना. अपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै. भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे. रोग हरै सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा. संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे. सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा. और मनोरथ जो कोई लावे सोहि अमित जीवन फल पावे. चारों जुग परताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियारा. साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे. अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता. राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा. तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे. अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई.
और देवता चित्तन दरहि हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटई मिटई सब पीड़ा, जो सुमिरई हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। ये शत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। के बोलो हनुमान की जय। धन्यवाद धन्यवाद।